जैसे आप सभी को विदित है, आज हमारे अनंत उपकारी राष्ट्र संत भारत दिवाकर तीर्थ प्रभावक तपोनिधि यथार्थ नामी अचल गच्छाधिपति पूज्यपाद गुरुदेव आचार्य भगवंत श्रीमद गुणसागर सुरेश जी महाराजा साहेब की 32वीं पुण्यतिथि है और उसके उपलक्ष्य में जो 3 दिन का कार्यक्रम तय किया गया है, उसमें आज प्रथम दिन गुणानुवाद सभा का कार्यक्रम है। तो सबसे पहले श्रावकों में से विनू भाई, यहाँ के स्पीकर, अच्छे वक्ता, श्रावकों में प्रासंगिक वक्तव्य देने में जो एकदम एक्सपर्ट हैं, ऐसे हमारे बुलंद आवाज के धनी सुश्रावक श्री विनू भाई शाह, जो कच्छ भुज के रहने वाले हैं लेकिन पिछले कई सालों से धुलिया में स्थिर हैं। पहले उनके और खुद भी अचलगच्छ के हैं। तो आज पहले उनके मुख से कुछ जैसी का गुणानुवाद सुनेंगे और उसके बाद में फिर गोविंद जी भाई सोनी, आप सभी अच्छी तरह सबको पहचानते हैं इनको, जो पिछले कई सालों तक या अपने संघ में ट्रस्टी के रूप में जिन्होंने अच्छी सेवा दी है, वर्तमान में भी पारोला तीर्थ वगैरह के भी ट्रस्टी के रूप में वो सक्रिय हैं बहुत। यहाँ पर भी भले अभी ट्रस्टी वगैरह के रूप में नहीं है, फिर भी ये चातुर्मास यहाँ हमारा कराने में भी इनकी मेहनत और इनका योगदान मुख्य रूप से है। तो फिर वो गोविंद जी भाई सोनी वो भी गुणानुवाद करेंगे। उसके बाद फिर आप में से किसी को भी कुछ बोलना हो, गुणानुवाद करना हो तो भी कर सकेंगे। बहनों को कोई ऐसी गौली बोलनी हो तो उसके लिए भी तैयार रहना। तो और अभी जो वक्ता आ रहे हैं विनू भाई, वो भी यहाँ के संघ में कुछ सालों तक ट्रस्टी के रूप में उन्होंने भी अच्छी सेवा दी है। तो सबसे पहले विनू भाई को कहते हैं कि पूज्य श्री का गुणानुवाद करें। बोलो शीतलनाथ भगवान की। सकल संघ उपस्थित भाग्यशाળી मानव, पूज्यपाद आचार्य भगवान महोदय सागर સુરેશ્વરજી મહારાજ સાહેબે એટલી બધી વાતો કરી। સાગરની સામે એક બિંદુ છે, પણ એ બિંદુની એટલી બધી જેમને કહેવાય ને એમની ભાષામાં એમને જે ગુણાનુવાદ છે આજે ગુરુદેવનો, પણ એકચ્યુઅલી શરૂઆતમાં ગુણાનુવાદ ગુરુદેવ મારો જ કરી નાખ્યો છે એવું મને લાગે છે। ચાલો, હમણાં સાંભળવા મળ્યું પૂજ્યપાદ આચાર્ય ભગવાન રાષ્ટ્રસંત અચલ ગચ્છાધિપતિ પૂજ્યપાદ ગુરુદેવ ગુણ સાગર સુરેશ્વરજી મહારાજ સાહેબ, જે ગુણોના સાગર સમા હતા એવા ગુણ સાગર સુરેશ્વરજી મહારાજ સાહેબને આજે 32મી પુણ્યતિથિ છે। ખરેખર અચલગચ્છનો એમ કહેવા જઈએ તો જે સામ્રાજ્ય વધ્યું, ફૂલ્યું, ફલ્યું એ આ ગચ્છાધિપતિની જેને કહેવાય છત્રછાયા, કે જેમાં આ અચલગચ્છ સમુદાય, આ આખો સમુદાય જે કંઈ આગળ વધ્યો, જે ભારતભરના સમુદાયમાં જેનું નામ થયું એવા આ સાગર સમા પૂજ્યપાદ ગુરુદેવ ગુણ સાગર સુરેશ્વરજી મહારાજ સાહેબ। મારો તો બહુ કંઈ એટલો પરિચય નથી ગુરુદેવ સાથે। હા, એક છે કે એમણે નિશ્રામાં ઘણા સંઘો કાઢ્યા, ઘણી પ્રતિષ્ઠાઓ થઈ, ઘણી દીક્ષાઓ કરાવી અને યોગાની યોગ મુંબઈથી સમેત શિખર જ્યારે છેરીપાલી સંઘ નીકળ્યો હતો, એક ઐતિહાસિક એવો સંઘ એ જ જમાનામાં કાઢ્યો હતો અને એમની પ્રેરણા અને એમની સંપૂર્ણ નિશ્રા આ પૂજ્યપાદ ગુરુદેવ ગુણ સાગર સુરેશ્વરજી મહારાજ સાહેબની નિશ્રા હતી।
અને યોગાનુયોગ ધુલિયામાં પણ એ આવ્યા હતા. આ સંઘ ધુલિયામાં પણ 2 દિવસ રહ્યું હતું અને એ વખતે અમારો એમની સાથે પ્રથમવાર જેને કહેવાય સંપર્ક થયો હતો. ત્યારબાદ ભાંડુપમાં પણ અમે ગયા હતા એક વખત, ત્યારે થયો હતો. આમ અમુક જગ્યાએ જતા હતા ત્યારે બાય ચાન્સ યોગાનુયોગ અમારો સંપર્ક થતો હતો. પણ સંપર્ક એટલે ફક્ત એટલો જ કે ગુરુદેવ છે અને આપણે ગુરુદેવને વંદન કરવા જવાનું, એટલો જ આપણો એમની સાથે સંબંધ, વિશેષ કોઈ સંબંધ હતો નહીં. હા, બાકી આ સમુદાયમાં આજે આચાર્ય ભગવાન બેઠા છે અહીંયા, એમને કહો કે જય લક્ષ્મી શ્રીજી મહારાજ સાહેબ, જય દર્શિતા શ્રીજી મહારાજ સાહેબ, દેવરત્ન સાગર મહારાજ સાહેબ, એમના સાથે થોડોસો અમારો પરિચય હતો અને એમના દ્વારા જ આ ગચ્છાધિપતિ મહારાજ સાહેબની જે કંઈક થોડીક ઝાલકીઓ, જાણકારી, વિશેષતાઓ એ બધી જાણવા મળી. ખરેખર આજના કાળમાં આવી સંયમ મૂર્તિ શાસનને મળી એ પણ આપણું બહુ મોટું ભાગ્ય છે કે જેના લીધે આજે આપણો આચાર્યગઢ સંઘ, આખો આ સમુદાય ખુલ્લો ફલ્યો છે. વધારે તો હવે હું કંઈ કહી શકતો નથી, કારણ કે આ ગુરુદેવનો મારો જેટલો હતો થોડોસો જ પરિચય હતો, પણ એમાં પણ થોડામાં આપણે જેટલું બધું સમાવી લીધું છે, જેટલું મારાથી શક્ય હતું એટલું મેં કીધું છે. એટલું જ કહેવું છે, હે ગુરુદેવ, આજે તમે જ્યાં પણ છો અમારા ઉપર તમારા આશીર્વાદ નિત્ય વરસતા રહે, એ જ મારી આજના દિવસે આપની પાસે અપેક્ષા અને માગણી કરું છું. ધન્યવાદ. એક તમારું અધૂરું રહી છે, એક ગીત ન પૂછ. ગુણથી ભરેલા ગુણીજન દેખી હૈયું મારું નૃત્ય કરે, હૈયું મારું નૃત્ય કરે. એ સંતોના ચરણ કમળમાં મુજ જીવનનું અર્ધ રે. ધર્મ ભાવના હૈયે સૌમાં નવ લાવે, વેર ઝેરના પાપ તજીને મંગલ ગીતો એ ગાવે, મંગલ ગીતો એ ગાવે. ફરી એકવાર, હે ગુરુદેવ, આપણે અમારા ઉપર કૃપા દૃષ્ટિ રહ્યો, એ જ આજના દિવસની મારી અભિલાષા છે. ધન્યવાદ. ગોવિંદજીભાઈ સોની, ધર્મલા. ખરેખર શીતલનાથ દાદાની શીતલ છાયામાં COVID-19 મહાભયંકર જ્યારે થઈ રહ્યું છે, પણ આપ સૌના પુણ્યબળ, ગુરુદેવનું તપબળ અને આવા શાસન સમ્રાટ ગુરુદેવની જેમની કૃપા હોય તો આપણે આ ચાતુર્માસ પણ બહુ સારી રીતે, બહુ ડર હતો વ્યાખ્યાન થશે, કરાવશું, થશે કે નહીં થશે, પણ ગુરુદેવનું મનોબળ અને ગુરુદેવની કૃપા, એવી અસીમ કૃપા, કાંઈ નહીં થાય. મેં કીધું સાહેબ સંભાળીએ આપણે, કાંઈ નહીં. આવી બધા તમારી પુણ્યાય, અને એ પુણ્યાયમાં આપણા અચલ ગચ્છાધિપતિ પરમ પૂજ્ય મહોદય સાગરનું પણ આપણે ગુણાનુવાદ કર્યું. ગુણોદય સાગરનું પણ આપણે ગુણાનુવાદ કર્યું. ને આ વખતે રાષ્ટ્રસંત અચલ ગચ્છાધિપતિ પરમ પૂજ્ય ગુણસાગર મહારાજ સાહેબની આજે 32મી એ પુણ્યતિથિ છે. હું તો બહુ નાનો હતો, એમનાથી બહુ જ સમજો ને કે ઓછો સંપર્કમાં આવ્યો, પણ જે વાત આપણે સાંભળી છે, જે માન્યું છે, એમનું સંસારિક નામ ગાંગીભાઈ હતું, માતાનું નામ ધનબાઈ હતું અને પિતાશ્રીનું નામ લાલજીભાઈ હતું. એમનો જન્મ કચ્છ ડેઢિયા, અને ડેઢિયામાં જન્મ્યા ત્યારે જ એમના ઘરમાં એક ધર્મ પહેલેથી જ હતું, પણ વિશેષ એમનો જન્મ થયો અને કુદરતનું એવી સરસ્વતી એમને મળી કે એમણે બહુ જ બાલાવસ્થામાં સંસારનો ત્યાગ કર્યો. ત્યાગ કર્યા પછી પણ ગૌતમ
સાગર સુરેશ્વર મહારાજ સાહેબ, નીતિ સાગર મહારાજ સાહેબ, એમની નિશ્રામાં એમણે દીક્ષા લઈ સંસ્કૃતનું એવું રટણ કર્યું. આ સંસ્કૃત ભાષામાં એવો એમનો પકડ હતી કે આજે તમે અચલગતની પૂજાઓના સંગ્રહ પણ જોશો ને તો સાહેબજીના પોતાના બનાવેલા છે. અને દરેક સંગ્રહમાં ગૌતમ નિધિ ગુણ એમનું નામ હંમેશા એમણે કોતર્યું છે, એક ઇતિહાસ બનાવ્યો છે. એવા રાષ્ટ્ર સંતની આજે 32મી પુણ્યતિથિએ સાહેબે અત્યારે 3 દિવસનો કાર્યક્રમ રાખ્યો છે ને એમાં આપણે એનો લાભ લઈ રહ્યા છીએ. અત્યારે વિનુભાઈએ કીધું કે ધુલિયામાં પણ એમના પગલાં થઈ ગયેલા. છરી પાટતો સંઘ, જે આખા ઇતિહાસમાં જૈન ધર્મમાં આટલો મોટો સંઘ એમણે જે કાઢ્યો હતો, અને સાધુ શ્રાવક શ્રાવિકા સાધ્વીજી ને આમ લાગે કે નહીં, જૈન ધર્મનો એક આ સિતારો એક ઇતિહાસ બનાવી દીધો. અને બીજું કચ્છમાં 72 જિનાલય, 72 જિનાલય આજે તમે ત્યાં જાઓ એ ભૂમિને પગ રાખો તો એવો ચમત્કાર થાય છે. આદિનાથ દાદા 72 ડેરીઓ છે, 24 વર્તમાન, 24 આપણે ભૂતકાળ, અતિ 24 અને અનાગત 24. આપણને મને ચિત્તને પણ ન હોય કે આવા 72 જિનાલયમાં જઈએ તો સાક્ષાત આપણને આવી લાગણી થાય છે. એ એમનું સપનું હતું અને એ સપનું પણ પૂરું કર્યું ને આજે એક ઇતિહાસ સુવર્ણ અક્ષરે લખાયો છે. એવા મહાન ગુરુદેવ, ઉપકારી ગુરુદેવ ની ખરેખર જેટલી પણ અનુમોદના કરીએ એટલી ઓછી છે. અને એમાં જ એવા શિષ્ય મળ્યા છે એમને, બહુ સરળ, સ્વભાવિક, શાંત, આવો તોય ભલે, ના આવો તોય ભલે, સામે થઈને ઘરે પગલાં કરે એવા મહાન આચાર્ય ભગવંત. હું તમને અત્યારનો દાખલો આપું. હું તો રોજ અડધો કલાક સાહેબજી પાસે આવું છું, વધુ નથી આવતો. પણ મારા ભાઈની તબિયત ના દુરસ્ત હોવાથી મને બપોરને ચેન નહીં પડતો હતો. છોકરાઓ કોઈ જમ્યા ન હતા, બધાને જમાડ્યા, પણ માનું ચિત્ત બહુ અપસેટ હતું. કોઈને વાત નહીં કરી, સીધો ગુરુદેવ પાસે આવ્યો. સાહેબ, નાના ભાઈની તબિયત મને ઠીક નથી લાગતી, તમે માંગલિક આપશો તો એક નમ્ર વિનંતી છે. વિનંતી છે નહીં, ચાલો દાંડી લો ને ચાલો. અરે મેં કીધું સાહેબ આજે તપસ્યા છે, પાણી તો વાપરો. પાણી પણ નહીં વાપર્યું. એવા સરળ, એવા શાંત મૂર્તિ, એવા ગુરુદેવના શિષ્ય, જે એમના સંસ્કારો એમને પ્રાપ્ત કર્યા છે. અને 2 કલાક સુધી, 4:30 થી 6:30 સુધી વિનોદભાઈને ભક્તિ કરાવી. બધું એની ત્યાગ કરી દીધો. સાહેબજીને 6:30 વાગ્યા. સાહેબજી, મેં કીધું 6:30 વાગે છે સાહેબ, પાણી તો વાપરી લો. ચાલો હવે આપણે ત્યાં જ જઈશું. અહીંયા હું છોડવા આવ્યો, ત્રિકાલવનના કહીને ઘરે જાઉં છું. મનમાં ભાવના હતી કે એને સંથારો આપી દઉં. વિનોદભાઈને કીધું, ભાઈ સાહેબજી બધું વરાવી ગયા છે, હવે મારું એક સંથારો આપવાની ભાવના છે. અને મિચ્છામી ડોકડમ કીધું ને એણે મારા હાથમાં જ પ્રાણ. પણ એમનું મૃત્યુ કહેવાનો ભાવાર્થ, આવા સરળ સ્વભાવિક આચાર્ય ભગવંત એ મૃત્યુને મહોત્સવ બનાવી દીધું.
મને તો ખબર નહીં હતી, આપણે તો દુઃખના એમાં હતા. લગભગ અડધા પોણા કલાક પછી દરેક ગુરુ ભગવંતોના ફોન આવે, ગોવિંદજીભાઈ આ કલયુગમાં તમે આવો. સરસ મજાનો સમાધિ મરણ ભાઈને મળેલ છે. અમે જોઈને મેં કીધું કોણે મોકલ્યું, શું કર્યું, કેવી રીતે ગયું. ખરેખર આવા મહાત્માઓ કે જેમણે સંસાર તો ત્યાગી દીધું છે, પણ શ્રાવક શ્રાવિકાની ખબર, તબિયતની ખબર, બધી જાતની કાળજી રાખનારા એવા મહાપુરુષ આપણને મળ્યા છે. અને એવા મહાપુરુષના ગુરુદેવનું આજે આપણે 32મી પુણ્યતિથિએ એમની ગુણના વાત કરીએ છીએ. ને આવા શિષ્ય બહુ ઓછા મળે. આચાર્ય ભગવંતો કોઈના ઘરે જાય નહીં, છેલ્લે ઘડીએ કહી દે શિષ્યને જાઓ મંગલિક સંભળાવી આવો, પણ પોતે હાજરા હજુર અને 2 કલાક ભક્તિ કરાવી એવા સરળ એવા ગુરુદેવના એના ઉપર આશીર્વાદ, એવા એમના શિષ્યો પણ એવા પાવરફુલ. દેવરત્ન મહારાજ સાહેબને તમે જાણતા હશો, માણ્યા હશો. આપણે તે અહીંયા પણ આવી ગયા છે. એ એમના ગુરુ છે. એક સાથે 12 15 આચાર્ય ભગવંતોને સાથે જૈન ધર્મનો કેમ વિકાસ થાય, જૈન ધર્મ કેમ પામે, કેમ આપણે એકજૂટ રહીએ, ચોથ પાંચમ વિસરી જઈએ, એ એમની એવી ભાવના. એવા ગુરુદેવના આ ગુરુ છે, સાથે 2 શિષ્ય છે. અને એમનો ઉપકાર રાષ્ટ્રસંત ખરેખર એમને જે જ્ઞાન આપ્યું છે આપણા માટે, જૈન ધર્મ માટે કલ્યાણકારી એવા ગુરુદેવને આપણે જેટલું પણ કહીએ એટલું ઓછું છે. રાષ્ટ્રસંત તરીકે એ ઓળખ પામી. સંસ્કૃતમાં એવું પ્રાધ્યાપક એમણે બનાવ્યું કે સંસ્કૃતની પકડ હતી. જે પણ દીક્ષા લે છે એને પહેલા સંસ્કૃતનું પઠન અને સેવા કેવી. રાત્રે 2 રાત્રે 3 વાગે 4 વાગે ઉઠી દરેક ગુરુ ભગવંતોના શિષ્યને કેમ છે, કેમ નહીં, કેમ સૂતો છે એવી સંભાળ રાખનારા એવા ગુરુદેવને આજે 32મી પુણ્યતિથિએ આપણે ગુણોનો વાત કરી. એમની જે આપણને આગળ આશીર્વાદ મળ્યા છે એ આશીર્વાદ લઈને એ આત્મા જ્યાં પણ હોય, મોક્ષમાં હોય, બધાને આપણને આશીર્વાદ વરસતા રહે. જય जिनेन्द्र, जय श्री. अभी मुनिराज श्री ज्ञान रत्न सागर जी महाराज के संसार पक्ष में मामा जी अभी 2-3 दिन हुए यहाँ पर आए हुए हैं और इनकी भावना भी ये चारित्र लेने की है. और इसी 3 दिन के कार्यक्रम में परसों जो 3 श्रावकों का केस लोच होने वाला है, जिसमें गोविंद जी भाई भी हैं और साथ में ये तीनों भी पास में साथ में बैठे हैं ना, इन तीनों का केस लोच होने वाला है. तो ये लहरचंद भाई आज से जिन्होंने 19वीं आंबिल की होली का भी प्रारंभ किया है. अभी 3 दिन तो व्यासना करते थे, अलग अलग भाग्यशाली ने जिन्होंने लाभ भी ले लिया व्यासना करवाने का भी. रमेश भाई उनको ले जाते थे और आज से 19वीं होली का भी प्रारंभ किया है. आज इन दोनों श्रावकों का पौषध भी है. तो ऐसे और तीसरे हाँ ये भी हैं. तो अभी तो लहरचंद भाई साई जी का गुणानुवाद करेंगे. इनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, इनके कंठ से स्तवन भी सुनने जैसे होते हैं. धर्मला वही बोलता. गुरु गोविंद दोनों खड़े न किसको लागू पाए, बलियारी गुरुदेव की जिन्हें गोविंद दियो बता. મારા પરમ ગુરુદેવ
એટલા ચમત્કારી, એટલા વચન સિદ્ધિના પુરુષ હતા. હું એની પાસે જાઉં, ખાલી એક જ શબ્દ બોલે, લે, બસ. બીજું સાહેબ આટલા વર્ષમાં મારી સાથે કોઈ બીજી વાત ડિસ્કશન, અમે લાલબાગ શિબિરમાં બી જઈએ, લે, બસ. તો એમને ત્યાંથી મને મંત્ર આપ્યો કે લહેર, તું લહેર બની જા. એટલે આજે આ સ્થિતિ સુધી હું પહોંચી આવ્યો છું, એ આ બધા ગુરુદેવની કૃપાથી. અમે જ્યાં હમણાં ભાઈકલામાં રહીએ છીએ, ભાઈકલા વેસ્ટ બોમ્બે, સાહેબજીનું વચન સિદ્ધિની વાત કરું છું કે સાહેબજી અમારે ત્યાં પધારેલા. અમારે ત્યાં જિનાલય હતું નહીં, મંદિર હતું નહીં. સાહેબજીના પગલા થયા. સાહેબજીએ કીધું કે આ જગ્યાએ દેરાસર બનશે. પછી કેટલા વર્ષો પછી અમને ત્યાં જમીન મળી. આજે સાક્ષાત શંખેશ્વર દાદાનું ઉત્કૃષ્ટ કોટીનું અમારે ત્યાં જૈન મંદિર બની ગયું છે. આ બધી સાહેબજીની પુણ્યતિથિ હતી, પુણ્ય કૃપાથી. સાહેબજી ભાસ્કર નાખી ગયા કે આ જગ્યા પર દેરાસર બનશે. અમારી જગ્યા બાજુમાં હતી, તો કુદરતે એ જગ્યા માળામાં રિન્યુઅલમાં ગઈ. પણ સાહેબજીએ જ્યાં ભાસ્કર નાખ્યો એ જ જગ્યા ઉપર અમારું આ મંદિર ગયું. અને સાક્ષાત એવા ભગવાન છે અમારા. તમે જે બી ધારો એ બધું કામ શંકરેશ્વર દાદાની કૃપાથી. એટલું અમારું આ એરિયામાં દિવસે તલવારો ઉડતી હતી, બાટલા ઉડે, એટલી મારામારીનું આ એરિયા હતું. એકદમ શાંત નિર્મળ થઈ ગયું આ સાહેબજીના પગલા થયા પછી. એટલી ઉત્કૃષ્ટ વચન સિદ્ધિના સ્વામીને આપણે આજે 32મી પુણ્યતિથિએ ખૂબ ખૂબ અનુમોદના કરીએ. એમની કૃપા આપણા સૌ પર વસી રહે. આ રાષ્ટ્ર સંત નહીં, દિલો સંત હતા. બધાના દિલોમાં સ્થિર થયેલા ગયેલા એવા રાષ્ટ્ર સંત હતા. એમને આપણે સર્વસંમતિ ખૂબ ખૂબ અંતરથી अनुमोदना करिए, अन्य वंदना करिए. धन्यवाद. अभी श्राविका गुरु गुणभौली बोलेंगे, उसके बाद में हम गुणानुवाद करेंगे.
ग्रामे श्री डेढ़िया के बुद्ध जन कलिते लब्ध जन्मासुरं ये प्रातः स्मर्तव्य नामा वर विबुधन तो संयमे लीन चेता विख्यातोन्वर्त नाम्ना विरचित विविध ग्रंथ रत्नो प्रमत्तो मोक्ष श्रीदायकोशौ जयतु भुवि चिरम् श्री गुणाम्बोधिशूरी श्री गुणसागर शूरी। अनंत उपकारी विश्व कल्याणकर ऐसे श्री जिन शासन के गगनांगण में समय समय पर अनेकानेक ऐसे महापुरुष होते रहे हैं कि जो अपनी आत्म कल्याण के साथ साथ में जिन शासन की महान प्रभावना करते हैं, संघ और समाज के ऊपर उपकारों की हेली वर्षाते हैं, ऐसे महापुरुषों की श्रेणी में आज जिनका हम गुणानुवाद कर रहे हैं 32वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में, ऐसे राष्ट्र संत भारत दिवाकर तीर्थ प्रभावक तपोनिधि यथार्थ नामी अचल गच्छाधिपति पूज्यपाद गुरुदेव श्री गुणसागर सुरीश्वर जी महाराजा साहेब, आपका जन्म बराबर ध्यान से अभी पूरा गुणानुवाद सुनना हो सकता है परसों केसलोद के समय में साथ साथ में ये प्रश्नोत्तरी भी इनामी रखी जाएगी। हाँ, तो उस वक्त भी सभी को जवाब देना है, बराबर ध्यान से सुनना और नोट करते रहना। आपका जन्म कच्छ के अंदर मांडवी तालुका, कच्छ जिला मांडवी तालुका, और उसमें डेढ़िया गांव का नाम क्या है? डेढ़िया गांव के अंदर आपका जन्म विक्रम संवत 1969 विक्रम संवत ईस्वी सन नहीं, विक्रम संवत 1969 में तिथि कौन सी थी? महासुदी बीज, महासुदी बीज को आपका जन्म हुआ था डेढ़िया गांव में। मातुश्री का नाम था धनबाई, क्या नाम? धनबाई। और पिताजी का नाम था लालजी भाई, लालजी भाई। आपको याद है? हाँ, आप बोले थे, उन्होंने ये बराबर ध्यान रख लिया है। पिताजी का नाम था लालजी भाई और आपका गोत्र कौन सा था? छेड़ा। सरनेम होती है, सरनेम गाला, कोई गड्ढा, कोई छेड़ा, अलग अलग सरनेम होती है जो। तो छेड़ा गोत्र में आपका जन्म हुआ था। तो माता धनबाई के कुक्षी रत्न, कुक्षी में से रत्न, और पिता लालजी बाई के कुल दीपक। ऐसे छेड़ा गोत्रीय ये बालक जिसका नाम बचपन में ही क्या रखा गया? गांगजी बाई। गांगजी बाई आपका नाम था। पुत्र के लक्षण तो पालने से ही पते चल जाते हैं पता। इसी प्रकार से ये बालक एकदम तेजस्वी, दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ता गया। माता श्री जो धनबाई वो धर्मनिष्ठ थी, इसलिए अपने बालक गांधी बाई में भी बचपन से ही उन्होंने अच्छे संस्कार डाले। लेकिन उस जमाने में पढ़ाई ज्यादा नहीं हो पाती थी, केवल 4 किताब पढ़े थे आप। इतना गांधी बाई 4th स्टैंडर्ड 4th कक्षा पास की। और फिर इसके पिताजी मुंबई में शिवरी में, वडाला के पास मुंबई में शिवरी है, वहां पर आपकी दुकान थी। तो कौटुंबिक संयोगों के अनुसार बस 4 किताब का अध्ययन करवाने के बाद गांधी बाई को भी मुंबई बुला लिया। तो आप पिताजी को इतनी छोटी उम्र में दुकान में भी सहाय करते थे, साथ में अपनी मातुश्री को भी गृह कार्य में भी मदद करते थे, हेल्प करते थे। और इनके साथ में
धार्मिक अध्ययन भी करते थे। पूर्व जन्म के कोई ऐसे अच्छे संस्कार होंगे कि देखते ही देखते 5 प्रतिक्रमण वगैरह आपने कंठस्थ कर लिया। इतना ही नहीं, आपने श्रावकों का आगे चल करके ऐसा एक मंडल बनाया। आज भी सामायिक मंडल वगैरह होते हैं ना, बहनों का महिला मंडल, पूजा मंडल वगैरह होते हैं। आपने सामायिक मंडल कैसा तैयार किया था, आप सभी को सामायिक प्रतिक्रमण वगैरह करवाते थे। इतना नहीं, धार्मिक अध्ययन भी आप योग्य श्रावकों को करवाते थे। ऐसे करते करते करीब 14 साल के आसपास की आपकी उम्र थी और आप एक जो जैसे अभी कोरोना चल रहा है महामारी, उसकी वैक्सीन अभी खोजने में लगे हुए हैं। उस जमाने में एक ऐसा ही चेपी रोग था जिसको गुजराती में शीतला और ऐसे चेचक कहते हैं। चेचक, शरीर पे फूले फूले, हमको भी हुआ था, बचपन में हुआ था। फिर आगे चल, माता जी को ही बोलते हैं। फिर आगे तो उसकी वैक्सीन आ गई, वो रक्सी फर्जियात कंपलसरी बच्चों को दी जाती थी, इसलिए आज वो नहीं होता है प्राय करके। तो उस जमाने में था, तो आपको छोटी उम्र में ही चेचक का रोग ऐसा हो गया था, छोटी उम्र एकदम, और एकदम इसमें बेहोश हो गए। तो परिवारजनों को लगा, घंटों तक ऐसे ही पड़े रहे थे। उस जमाने में मेडिकल का भी इतना विकास नहीं हुआ था, तो लगा कि ये बालक तो शांत हो गया, चल बसा है। तो उनकी स्मशान यात्रा की तैयारी हो गई। उसके जनाजा, ननामी बोलते हैं, ठाठड़ी बोलते हैं, और बस तैयारी सब हो गई। उसके बच्चे को सुला दिया गया है। 14 साल से भी छोटी उम्र होगी मेरे ख्याल से, और एकदम ऐसा निश्चय जैसे मर गया है, सबको लगा मर गया है। और ननामी बिल्कुल तैयार हो रही थी। इतने में हमारे सभी के भाग्य योग से उनके पांव का अंगूठा में थोड़ा सा कंपन हुआ और किसी ने वो देख लिया। तो कह रहे ये तो अभी जिंदा लगता है, अरे भाई क्या कर रहे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। सब बंधन छोड़ दिए और जिनकी स्मशान यात्रा निकलने की तैयारी हो गई थी, वो हम सभी कच्ची समाज के, अचल गज के और जिन शासन के हम सभी के भाग्य योग से गच्छाधिपति बन गए, आगे चल करके जिंदा हो गए। और बस ये मौका मिला, ये निमित्त मिला, भीतर से अंतरात्मा जाग उठी, पूर्व जन्म के संस्कार भी जाग उठे, वैराग्य भाव हो गया। ओ जीवन कितना क्षण भंगुर है, कभी भी आयु समाप्त हो सकती है। कई लोग बोलते हैं गड़पण में गोविंद गासु, बड़े होंगे तो भगवान की भक्ति भजन करेंगे, अभी तो खाओ पियो और जलसा करो जयंतीला, क्यों? लेकिन उन्होंने देखा, अनुभव किया, इतनी छोटी उम्र में मैं बिल्कुल मौत के मुंह में पहुंच गया, यमराज के मुंह से मैं वापिस लौटा हूं। ये अभी जिंदगी मुझे बोनस के रूप में मिली है, समझ लो, जीवत दान मिला है। तो उसके बाद कितना सावधान हो जाना चाहिए। ऐसे तो अक्सर हमारे जीवन में भी कभी न कभी तो ऐसा अवसर आया ही होगा, कभी न कभी, जैसे एकदम कोई बीमार पड़ गए हैं और उस वक्त कितना वैराग्य के विचार भी आ जाते हैं, हे भगवान इससे मुझे बचा ले, अगर मैं इसमें बच जाऊं तो भाई कभी कोई पाप नहीं करूंगा, एकदम धर्ममय जीवन जीऊंगा। लेकिन जैसे थोड़े ठीक हो गए, भगवान को दिए हुए वचन सब भूल जाते हैं और संसार की मोह माया में लिपट जाते हैं। लेकिन ये बालक ऐसा नहीं था, उन्होंने तो बराबर ठान लिया, निश्चय कर लिया कि अभी मुझे इस मनुष्य जन्म को निरर्थक नहीं गंवाना है, इसका एक एक क्षण का सदुपयोग करना है और आगे चल करके मुझे संयम ही लेना है, चारित्र माने दीक्षा ही अंगीकार करनी है, ऐसा मन में ठान लिया था। फिर कुछ समय और अपने माँ बाप को भी कहा कि मुझे आशीर्वाद पूर्वक अनुज्ञा दीजिए, मैं अपने शेष जीवन को सार्थक करने के लिए मैं चारित्र के पंथ में प्रयाण करना चाहता हूँ। माता तो धर्मनिष्ठ थी, लेकिन पिताजी जैसे आजकल अभी भी होते हैं ना, पुरुष वर्ग तो व्यवसाय में व्यस्त होता है, ऐसे कमाने में, धर्म की मोनोपोली इन लोगों को सौंप दी है। तो पिताजी अभी उतने धर्म को नहीं समझ पाए थे, और माताजी भले समझदार थी, फिर भी मोह तो होता है ना, इसीलिए वो तुरंत वो भी हाँ नहीं वो कर रही थी। आगे बड़े देखना, फिर देखेंगे, ऐसा कुछ जवाब दिया होगा। फिर आगे आपने संकल्प कर लिया
पुरुषार्थ करना पड़ता है। कई लोग बोलते कि हमारा साहब क्या करें, भाग्य में लिखा नहीं है। रिक्शा की भावना तो होती है कि भाग्य में लिखा नहीं है। अरे भाग्य में लिखने के लिए आपने पुरुषार्थ कितना किया? भाग्य लिखने वाले हम ही तो होते हैं। हाँ? और कोई बाधा आती है अच्छे कार्य में तो उसको दूर करने के लिए कोई अभिग्रह लेना चाहिए, कोई दृढ़ संकल्प करना चाहिए, कुछ नियम लेना चाहिए। तो आपने क्या अभिग्रह लिया? जब तक मुझे भिक्षा के लिए इजाजत न मिले आशीर्वाद पूर्वक माता पिता की, तब तक मैं एकासन ही करूंगा। एक टाइम भोजन एकासन विधि पूर्वक का वो मैं करूंगा। ऐसे करते करते समय आगे बीत रहा है। एक बार ऐसा हुआ कि वो अपनी माताजी को गृह कार्य में मदद कर रहे हैं। कुछ भजिया भजिया बन रहा होगा, तेल का कढ़ाया गरम था, एकदम गर्मा गर्म तेल था, और माताजी ने कोई डब्बा मसाले का ऊपर से लेने के लिए कोशिश की, हाथ में से फिसल गया, सीधा पड़ा वो गर्मा गर्म तेल के कढ़ाइये में। तेल एकदम उछला और पास में ही बैठे गांधी बाई के शरीर के ऊपर वो तेल गर्मा गर्म तेल पड़ा। इतने बड़े बड़े फोल्ले हो गए। शाम का करीब समय होने आया था और फिर कहा गया कि भाई अभी पीड़ा हो रही है, तुम दवाई ले लो अथवा एकासन छोड़ दो, थोड़ा कुछ दूध वगैरह ले लो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं नियम तो तोड़ूंगा नहीं और रात्रि भोजन भी करूंगा नहीं। मक्कम रहे नियम में। कहावत है कि धर्मो रक्षति रक्षिता, अर्थात हम जब प्रतिकूल परिस्थिति में भी धर्म के नियमों का रक्षण में पालन अच्छी तरह करते हैं तो ऐसा धर्म फिर हमारा भी रक्षण अवश्य में करता है। वो अडिग रहे। कुछ दिनों तक ये सब पीड़ा चली, फिर भी उन्होंने न एकासन तोड़े, एकासन का संकल्प तोड़ा कि न एक दूसरा रात्रि भोजन के रात को दवाई वगैरह ली। धीरे 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 ठीक हो गए। ऐसी मक्कमता थी। फिर ऐसे 3 साल जब बीते एकासन करते करते, तब उनका जो चारित्र का जो अंतराय कर्म था वो दूर हुआ और इजाजत मिली चारित्र के लिए। तब फिर उनके ऊपर उनको कहा गया कि अब तो आपका मुहूर्त निकल गया, इजाजत मिल गई है, तो अब तो एकासना छोड़ दो, अभी नौकरसी करो अथवा व्यासना करो वगैरह। तब भी उन्होंने क्या कहा कि अगर गृहस्थ जीवन में एकासना किया तो फिर साधु जीवन में तो विशेष प्रकार से तप करना चाहिए। तप से ही तो तप ही साधु जीवन का अलंकार है, आभूषण है। तप से ही संयम का पालन भी अच्छी तरह हो सकता है। इसीलिए एकासन को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। पूरी आजीवन समझो, पिछले लास्ट के 8 साल उन्होंने वर्षित तप किया। पिछले 8 साल वर्षित तप किया। उससे पहले सारे साल सारी जिंदगी एकासन तप चालू ही रखा। कितने भी उग्र विहार हो, गर्मी के दिन हो, शासन के संघ के समाज के कितनी जिम्मेवारियां और कितने भी कार्य हो, लेकिन आपने कभी एकासना छोड़ा नहीं। इस प्रकार से हम सभी को भी प्रैक्टिकली वो उपदेश देते थे। बोलते ऐसे कम थे, लेकिन अपने जीवन से भी उपदेश वो देते थे। व्याख्यान भी अच्छी तरह दे सकते थे। एक एक श्लोक पर 4-4 महीना भी प्रवचन उन्होंने दिए हैं। मुंबई में लालवाड़ी में चतुर्मास था, एक ही श्लोक पर पूरा 4 महीना व्याख्यान चला था। समय शिखर भी चतुर्मास जब हुआ ना, वहां पर भी उत्तराधन के पहला एक ही श्लोक, उसके ऊपर 4 महीना साधु साधु भगवंतों को आपने वाचना प्रदान भी की थी। इतनी विद्वत्ता थी। तो इस तरह से उन्होंने तपस्या खुद ने भी की और उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की प्रेरणा से उनके जो प्रतापी पट्टदर हुए अचल तब चक्रवर्ती चल गच्छाधिपति पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद गुणोदय सागर सुरीश्वरी महाराजा साहेब, उन्होंने 54वां वर्ष तक अंत में चालू था। तो ये सब भी आपकी कृपा और प्रेरणा की बदौलत है। और आपके वर्षित तप का पालना करवाने के लिए राष्ट्रपति महामहिम ज्ञानी जैल सिंह, वो भी कच्छ में 72 जिनालय पर पधारे हुए थे और आपको राष्ट्र संत की उपाधि भी दी थी। उसी प्रकार से मुंबई से समेत शिखर जी का छड़ी पालता हुआ संघ, वो भी जब बिहार में से गुजर रहा था तो वहां का गवर्नर AR किडवाई, रफी अहमद किडवाई, वडाला मुंबई में रोड का नाम ही रफी अहमद किडवाई रोड, वो बिहार के गवर्नर से, तो वो भी साहब का दर्शन करने के लिए
टेंट में पधारे थे संघ में, उन्होंने भी आपको, और जब दूसरी बार संघ समेत शिखर पहुंचा वहां पर भी वो पधारे थे और उन्होंने आपको भारत दिवाकर, दिवाकर माने सूर्य, सूर्य जैसे प्रकाश फैलाता है वैसे आपने भी हजारों लाखों जीवों के जीवन में सम्यक ज्ञान का प्रकाश फैलाया। तो भारत दिवाकर की उपमा गवर्नर ने दी थी, बिहार के गवर्नर ने दी थी। समेत शिखर का संघ जब 4.5 महीने का निकला था, गांव गांव में जहां जहां टेंट लगते थे, आसपास के कितने गांवों के हजारों जैनेतर लोग भी दर्शन करने के लिए आते थे कुतूहल से भी। उनके लिए स्पेशल प्रवचन रखा जाता था। जो संघ में यात्रालु थे उनके लिए अलग प्रवचन था अपनी मातृभाषा गुजराती में, और वो महाराष्ट्र में से गुजरते तो मराठी भाषा में, बिहार में जाते तो हिंदी भाषा में प्रवचन होते थे। कभी हम देते थे, कभी देवरत्न सागर जी देते थे, कभी दूसरे कोई महाराज देते थे। मुख्यत्वे तो मराठी वगैरह भाषा में देवरत्न सागर जी प्रवचन देते थे। और श्रोता जितने भी आते सभी को 7 व्यसनों के ऊपर समझा करके उसको त्याग की प्रतिज्ञा दिलाई जाती थी। हर एक को एक तस्वीर नवकार मंत्र और साहिब की फोटो हो और साथ में एक माला प्रदान की जाती, नवकार मंत्र उनको दिया जाता था। और उसमें पन्ने कार्ड में भी नवकार छपा हुआ था जिससे देख देख करके वो बोल सकें और नवकार गिन सकें। ऐसे हजारों लाखों जैनेत्रों को भी व्यसन मुक्त करवा करके नवकार महामंत्र प्रदान करवाया। और अनुमोदना, जब अनुमोदना करेंगे वो धन्य है जैनों को, इतना विशाल संघ है। पैदल चलते हैं रोज का 20-22 किलोमीटर, एक टाइम में भोजन करते हैं, रात को खाते पीते भी नहीं है, धन्य है धन्य है धन्य है। ऐसे अनुमोदना धारा लाखों जैनोत्रों के हृदय में भी भावांतर में जल्दी जैन धर्म पा सके, ऐसे धर्म बीज का वपन भी आपकी प्रेरणा से हुआ। जब बाबा की नाम से हाँ वो सब क्रमशः सब बातें आएंगी। तो जब वो संघ निकला ना मुंबई से समेत शिखर के लिए, शुरू में तो करीब 20-25 जितने संघपति तैयार हो गए थे, लेकिन किसी ने ऐसी अफवाह फैला दी कि अरे ये संघ बिहार में से जब गुजरेगा ना तो बिहार में तो बहुत वहाँ गरीबी है, भूखमरी है, तो वो लोग लूट लेंगे संघ को और इतनी युवान कन्याएं साथ में होंगी तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए तो जो संघपति के बने थे ना उनको भी कोई किसी ने ईर्ष्या भाव से, द्वेष भाव से किसी तरह भी खिसका दिया, हटा दिया। धीरे धीरे संघपतियों ने अपना नाम कैंसिल करवाने लगे कि हमको संघपति नहीं रहना है। फिर भी साहेब जी ने मक्कम, उनकी मनोबल देखो, उन्होंने ऐलान कर दिया चाहे सभी संघपति भी निकल जाएंगे तो भी यह संघ, उनको एक संघपति ऐसा श्रावक भक्त मिल गया था, उन्होंने कहा चिंता मत कीजिए, कोई नहीं होगा तो मैं अकेला भी निकालूंगा, लेकिन संघ तो निकलना चाहिए। आपके मुंह में से जो वचन निकला है वो फेल तो नहीं जाना चाहिए। और साहिब ने भी कह दिया कि जिनको रहना हो रहो, संघपति जाना हो निकल सकते हो, लेकिन यह संघ तो निकलेगा निकलेगा ही। और जो संघपति नहीं, कन्वीनर, संघ के कन्वीनर संचालक जो थे ना, मावजी भाई और प्रेमजी भाई, 2 कन्वीनर एकदम सक्षम थे जिन्होंने कच्छी समाज की पहली 99 यात्रा, जिनमें हम सब 3 छोटे मुनिवर थे, मैं भी था, 1000 यात्री का 100 दिन का आयोजन था, उनके जो कन्वीनर थे पहले साहब ने उनको ही कहा कि आप ये जिम्मेदारी संभालिए। उन्होंने भी हाथ ऊंचा कर दिया, साहेब ऐसा वातावरण अभी तो जोखमी है, इसलिए अभी आप छोड़ जाओ, बाद में कभी सोचेंगे, अभी नहीं। साहब ने क्या, जीवन का क्या भरोसा है, इसीलिए आप संभालो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं दूसरे किसी को सौंप दूंगा। आखिर छोटी उम्र वाले 22, 25, 30 साल की उम्र वाले 3 ऐसे युवान थे जो अभी अपने साहिब जी द्वारा स्थापित हुई जो आर्य रक्षित तत्वज्ञान विद्यापीठ है उसके जो अध्यक्ष हैं, और अभी लॉकडाउन के समय में उन्होंने ऑनलाइन जूम के द्वारा पूरा दिन सुबह से रात तक इतने तत्वज्ञान के अलग जो क्लास जिन्होंने चलाई, कच्ची समाज में भी जो प्रतिभाएं थी अलग अलग विषय में, इतने पंडित थे, सभी को अलग सब्जेक्ट दे करके वो सम्यक ध्यान की धारा बहाई। ऐसे श्रावक सी रामजी भाई श्यामजी धरो, दूसरे नंबर में थे किरण भाई गड़ा, वो भी बड़े उत्साही है, और तीसरे नंबर में है जतीन भाई छेड़ा जो घाटकोपर में रहते हैं, और किरण भाई वडाला शिवरी में रहते हैं। तो जतीन भाई तो अभी अचलगढ़ जैन ग्रुप संभालते हैं, करीब 55 जितने पेटा ग्रुप हो गए हैं अचलगढ़ जैन ग्रुप, उसके अंडर में करीब 13-14 हजार जितने जिनके सदस्य हो चुके हैं।
तो जो भी ऐसे विशिष्ट कार्यक्रम होते हैं उनके समाचार, उनकी तस्वीर, उनके क्लिप सब भिजवाते हैं तो तुरंत चारों ओर प्रसारित हो जाती हैं। अभी आपने जो ये प्रसंग सुनाया विनोद भाई की समाधि मरण का, वो भी उसी ग्रुप में डाला गया। उसकी इनके बेटे अमित भाई थे, उन्होंने भी फोटो क्लिप निकाली थी, फोटो निकाल लिए थे और उस ग्रुप में डाले गए तो चारों ओर बात फैल गई और सभी ओर से इनके फोन आने लगे, क्या बात है, क्या बात है ये। तो ऐसे 3 जो अभी नवयुवान थे उस वक्त, तो बिल्कुल आज से कितने 36 साल करीब पहले की बात है, छोटी उम्र वाले थे, लेकिन साईं जी की कृपा थी ना, नहीं तो इतना बड़ा संघ 1000 यात्री हो और 4.5 महीने का आयोजन हो और इतने छोटे छोटे 3, जैसे क्रिकेट की भाषा में कहें तो लास्ट के जो प्लेयर होते हैं 2-3 वो पुछड़िया बैट्समैन कहे जाते हैं ना, पुछड़िए बैट्समैन, ऐसे थे ये तीनों। लेकिन साईं जी की कृपा जो उनके सिर पर थी ना, वो ऐसे विघ्न भी बड़े काम में आते भी हैं। कभी बारिश हुई होगी, कभी पवन सुनामी जैसा हुआ, सब टेंट भी कभी उड़ गए होंगे, फिर भी हिम्मत हारे बिना सारी व्यवस्थाएं इन 3 मुख्य व्यक्तियों ने, बाकी मेरे सहयोग में थे, इस प्रकार से उन्होंने संभाल लिया। ये साईं जी की कृपा का ही चमत्कार है। उसी संघ में एक ऐसी भी घटना हुई कि साहब जी उस वक्त बड़ी उम्र के कारण डोली में थे, लेकिन अपनी तो करीब 65 साल की उम्र तक, 65 साल की उम्र तक तो पैदल ही चलते ही विहार करते थे। पिछले कुछ सालों में डोली, उस जमाने में व्हीलचेयर तो भी थी ही नहीं, तो डोली में थे। तो सामने से एक ट्रक आ रही थी और ट्रक का जो ब्रेक था वो फेल हो गया था। तो अभी ड्राइवर के कंट्रोल में ट्रक थी नहीं, कभी ऐसे मुड़े, कभी ऐसे मुड़े, कभी ऐसे, कभी ऐसे करते करते साहब जी जा रहे थे डोली में बैठ करके और एकदम सामने ऐसे ट्रक आ गई, बिल्कुल अभी जा रहे। एक क्षण भर के लिए अगर कुछ नहीं होता तो आग के ऊपर आ जाती, लेकिन जैसे वो आई नजदीक में ट्रक की, डोली वाले घबरा करके डोली को ऐसे रख करके, अपना जान सबको प्यारा होता है, तो साइड में हो गए। और साहब ने केवल ऐसा हाथ ऊंचा किया कि वो ट्रक वहीं रुक गई और वहीं ऐसे धीरे से वो ढल गई। ड्राइवर को भी कुछ नहीं हुआ, मरा नहीं, बच गया। और वो ड्राइवर पंजाबी को सिख था, वो आया नीचे, साहब के पैरों में गिरा, एकदम रोते रोते साहब से क्षमा याचना, साहब क्षमा करना, माफ करना, क्या करूं, ऐसा हो गया था, ब्रेक फेल हो गया था। साहब ने कहा कोई चिंता मत करो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे करुणावंत, ऐसे साहिब जी प्रभावशाली थे। तब से वहाँ चारों ओर बातें फैल गई और लोग आपको चमत्कारिक बाबा के रूप में जानते थे। रक्षाधिष्ठायी का माँ काली माँ अदृश्य रूप से आपके ऊपर उनकी बड़ी कृपा और हाथ उठाई। हर रोज रात को करीब 12-1 बजे तो जग जाते, करीब 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे वो सो जाते प्रतिक्रमण वगैरह के बाद, और फिर 3 घंटे की मुश्किल से बस आराम करते, फिर जग करके अपने सूर्य मंत्र का जाप ध्यान वगैरह में लग जाते थे, आराधना साधना में। तो ऐसे और भी कोई 1-2 प्रसंग है जब भी ऐसी मुसीबत में अथवा तो ऐसे एक्सीडेंट में वो बच गए अचिंत्य रूप से। उगच्छाधिशायी का अदृश्य रूप से उनको ऊपर हाथ था। तो ऐसे गुरुदेव दीक्षा लेने के बाद अध्ययन की इतनी उनकी जबरदस्त रुचि थी। उस जमाने में अध्ययन के लिए इतने संसाधन नहीं थे। आजकल तो किसी साधु साधी को पढ़ना हो, कितने पंडित भी मिल जाते हैं और पगार कितने भी ऊंचा पगार हो वो भी देने के लिए पड़ा पड़ी होती है कि मुझे लाभ दीजिए, मुझे लाभ दीजिए। वो जमाना ऐसा नहीं था। साहब कहते थे बड़ी मुश्किल से थोड़े महीने के लिए पंडित जी का योग हुआ। वो पंडित जी को पगार चुकाना था, उस जमाने में थोड़ा था, उसके लिए कितने बड़ी बड़ी पेढ़ियों को पोस्टकार्ड लिखते, तब मुश्किल से कभी कभी से थोड़ा वो पगार मिल सकता था। ऐसी पोजीशन थी। फिर भी लेकिन थोड़े समय में भी जो पंडित जी का योग हुआ उसमें इन्होंने इतना, उसका ग्रास्पिंग पावर, ग्रहण शक्ति पावरफुल थी कि बहुत ग्रहण कर लिया। और दीक्षा पर्याय दीक्षा जब ली आपने 1969 में रेडिया में 1993 में 1993 में आपकी दीक्षा हुई। 69 में माने कितनी साल, 24 साल की उम्र में आपकी दीक्षा हुई कच्छ डेडिया गांव में ही। उस वक्त कच्छ आधार देशोद्धारक दादा साहेब श्री गौतम सागर सूरी जी महाराज साहब थे। वो जामनगर में विराजमान थे, बड़ी उम्र भी थी, वो आ नहीं सकते थे। तो उन्होंने उनकी आज्ञा से
आचार्य भगवंत दान सागर सूरी महाराज साहब और वो कच्छ में पधारे हुए थे। उनके कर कमलों से आपकी दीक्षा हुई और आप दादा साहब ने कहा मेरी तो उम्र है श्री मैं अभी मेरा शिष्य नहीं करता हूँ। आपके शिष्य थे घणी वर्य श्री नीति सागर जी महाराज, बहुत ही शांत मूर्ति थे। तो आपके शिष्य के रूप में गणिवर श्री नीति सागर जी महाराज से गणिवर शिष्य के रूप में आपकी दीक्षा हुई और गांधी भाई में से बन गए मुनि गुण सागर जी महाराज साहेब, गुण सागर जी। हाँ, लेकिन आचार्य परी लग जाती है ना, फिर गुण सागर जी नहीं बोलना चाहिए, क्या इसके पीछे सूरीश्वर जी शब्द लगना चाहिए। कई बार अपन भूल जाते हैं। हमारे समाज में थोड़ा अज्ञानता ज्यादा होती है, गुण सागर महाराज ऐसे बोल लेते हैं, वो जरा अनुचित है। परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री गुण सागर सूरीश्वर जी महाराज साहेब ऐसे बोलना चाहिए। दीक्षा लेने के बाद गुरु भगवंती वैयावच में लग गए। बड़ी उम्र वाले थे दादा श्री गौतम सागर जी महाराज साहब, तो उनकी हर प्रकार की सेवा क्षेत्र इतने की और इतने आशीर्वाद प्राप्त किए। साथ में जो थोड़ा समय मिलता था उसमें पढ़ाई अध्ययन वगैरह चलता था। इतना नहीं, छोटी उम्र में ही आपने संस्कृत रचना का भी प्रारंभ कर लिया था। श्रीपाल चरित्र संस्कृत में, फिर 12 पर्व कथा संग्रह, माने 12 पर्व जो जैनों के मुख्य मुख्य आते हैं साल में, उनकी जो कथाएं और होते हैं उनका भी संस्कृत में आपने रचना की और संस्कृत में श्लोक रचना भी आप करने लग गए थे। ये सब देख करके और उनकी विनय नम्रता वैयावचारी गुणों से प्रभावित होकर के दादा साहब श्री गौतम सागर जी महाराज साहब ने आपको केवल 5 साल के दीक्षा पर्याय में उपाध्याय पद पर आरूढ़ किया। 1993 में दीक्षा हुई, तो 1998 में केवल 5 साल के दीक्षा पर्याय में 29 साल की उम्र में आपको उपाध्याय पद पर कच्छ मेराऊ गांव के अंदर आरूढ़ किया गया। आचार्य पद भी आगे चल करके 2012 में हुई। तब तो दादा साहब भी 2008 में चल बसे थे। फिर संघ में मिल करके आपको और आपके साथ दान सागर सूरी महाराज, उनको भी आचार्य पदवी हुई बा उस वक्त। और नेम सागर जी महाराज मुंबई में थे, कचसूत्री में थे। आपकी आचार्य पदवी मुंबई में लालवाड़ी में हुई, परेल लालवाड़ी आपकी, और दान सागर सूरी महाराज दोनों की साथ में आचार्य पदवी हुई। जिन्होंने दीक्षा दिलाई थी वो सब मुनि अवस्था में थे। आगे चल करके दोनों की साथ में आचार्य पदवी हुई और उसी दिन और उसी समय कच्छ में नेम सागर जी महाराज सुथरी में उनकी भी आचार्य पदवी, 3 की आचार्य पदवी साथ में हुई। जैसे हमारे 3 की भी आचार्य पदवी 3-4 साल पहले साथ में हुई है, रविंद्र सागर सूरी महाराज, वीरभद्र सागर सूरी महाराज, और हमारी कच्छ गणी पदवी भी तीनों की साथ में हुई जी पालीताना में। और आचार्य पदवी अभी 3-4 साल पहले पालीताना में ही तब चक्रवर्ती गुरुदेव श्री गुणोदय सागर सूरी जी महाराज साहब के कर कमलों से हुई। तो इस प्रकार से तीनों की आचार्य पदवी उस वक्त हुई थी। और शास्त्र में कहा है आचार्य जिन शासनोन्नति करा, आचार्य भगवान जिन शासन की उन्नति करने वाले होते हैं, जिनेश्वर भगवान शासन की स्थापना करते हैं, लेकिन उस स्थापना को, शासन को भगवंत की गैरहाजिरी में भी सैकड़ों हजारों साल लाखों साल तक वो परंपरा चलती रहे, उसके प्रभावना होती रहे, विकास होता रहे, वो सब जिम्मेदारी इनके ऊपर होती है, आचार्य के श्री के करकंधों पर होती है मुख्य रूप से। तो वो अपनी ड्यूटी समझ करके उन्होंने देखा कि कच्ची समाज में पैसे तो हैं, पैसे की और ही मुख्य रूप से सबका ध्यान है। सच्चा धन क्या है? सम्यक ज्ञान है। उस विषय में तो करीब करीब ऐसी स्थिति थी। तो इसीलिए आपने क्या किया, कच्छ के अंदर, कच्छ में मेराऊ गांव जहाँ आपकी उपाध्याय पद हुआ था, जहाँ पर वहां पर बालकों के लिए जैन तत्वज्ञान विद्यापीठ, आर्य रक्षित जैन तत्वज्ञान विद्यापीठ की स्थापना की। और सब फ्री, बच्चों को खाना पीना रहना किताब पढ़ना सब फ्री ऑफ चार्ज। और व्यावहारिक शिक्षण के साथ साथ मुख्य रूप से धार्मिक अध्ययन होवे और साथ में संस्कृत वगैरह का भी अध्ययन होवे। और हर रोज नवस्मरण का पाठ, हर रोज सभी बच्चे समूह मिल करके नवस्मरण का पाठ करते थे। इससे शायद खुद कहते थे कि नवस्मरण का पाठ समाज की संस्था है, तो समाज के बालक हर रोज ऐसे मंत्र गर्भित, भक्ति गर्भित नवस्मरण का पाठ करते हैं ना, उसके पुण्य प्रभाव से धीरे धीरे समाज में आर्थिक भी अच्छा समाज का विकास हुआ था। तो आचार्य भगवान खुद कहते थे ये नवस्मरण पाठ का ये प्रभाव है। हमारे छोटे भाई संसारी अभी भी हैं, जो दीपक भाई गाला कच्छ में है, कोड़ाई में, वो भी इसी विद्यापीठ के अंदर 5 साल तक उन्होंने धार्मिक और संस्कृत अध्ययन किया था और एकदम अच्छे होशियार विद्यार्थी थे, साहब के हृदय में बसे हुए थे।
कोई भी बाहर से मेहमान आते बुलाते थे, दीपक इधर आओ, चलो अमुक गाथा बोलो भक्तामर की, दीपो परस तमसी नाथ जगत प्रकाश आता है भक्तामर में, तो वो दीपक भाई नाम था। तो एक ये श्लोक पंक्ति बोल करके उनके प्रति अपना कृपा बरसाते थे। तो और वर्तमान में जो अचल गज के नायक हैं कला प्रभ सागर सूर्य आचार्य भगवान, वो आप भी इसी विद्यापीठ में करीब करीब सहाध्यायी की जैसे थे, ये दोनों ही अपना दीपक भाई और किशोर नाम था उनका, इसी में पढ़े हैं। तो हम जी मुंबई से कॉलेज छोड़ करके जब कच्छ में गए ना, तो पहले तो लक्ष्य यही था कि इस विद्यापीठ में रह करके धार्मिक अध्ययन करेंगे, संस्कृत आदि का अध्ययन करेंगे, बाद में आगे इच्छा का सोचेंगे। तो उसी लक्ष्य से हम आए थे, लेकिन उसमें फिर हम जाने की जरूरत नहीं पड़ी। पंडित जी का हो गया, और हमारी बहन ने जो दीक्षा ली हुई है वो जिन साधी जी के पास पढ़ती थी, बड़े आत्मज्ञानी और विदुषी एकदम विचक्षण थे, तो हमारी मातुश्री ने पहले से उनके साथ सब बातचीत कर ली थी, आचार्य भगवंत की भी इजाजत ले ली थी, और वहीं पर धार्मिक अध्ययन उन्हीं के पास और संस्कृत आदि का अध्ययन पंडित जी के पास वहां पर हुआ था। तो उस जमाने में ये विद्यापीठ का संचालन करना बड़ा मुश्किल था। उतने पैसे नहीं थे उस जमाने में जितने आजकल समाज लोगों के पास पैसे है ना। वो कहा जाता है कि रेत में नौका होड़ी चलाने जैसा कठिन काम था। पानी में तो कोई चला सकता है, लेकिन रेत में चलानी हो नौका कितना कठिन होता है। कच्छ जैसे छोटे गांव में, कच्छ के छोटे गांव में ये विद्यापीठ चलाना, तो इसके लिए बड़े पैसे चाहिए। पहले तो सबके लिए सब फ्री ऑफ चार्ज था। तो सभी साधु साधियों के वो भी पत्र लिखते थे कि आप भी सब प्रयत्न करो। चातुर्मास जहाँ जहाँ होते थे तो विद्यापीठ का भी फंड होता था, लेकिन सब फ्री है तो खर्च भी इतना होता होगा, तो बड़ी मुश्किल से खुद उन्होंने अपने विद्यापीठ के विकास के लिए 4 या 5 चातुर्मास तो वहीं पर किए विद्यापीठ में। कभी विद्यापीठ में करें, कभी मेरा गांव में करें, तो भी विद्यापीठ में आना जाना हो सकता है। तो इस प्रकार से खुद ने आपने विद्यार्थी को पढ़ाया। दूसरे शिक्षक तो भले थे ही, लेकिन आपने खुद ने भी बच्चों को पढ़ाया, धार्मिक अध्ययन करवाया, उसके अर्थ वगैरह समझाए, संस्कृत अध्ययन भी करवाया। कितनी मेहनत, भगीरथ जिसको कहते हैं, भगीरथ पुरुषार्थ परिश्रम आपने किया समाज के उत्थान के लिए। कुछ समय के बाद आपको लगा ये तो बच्चों के लिए है, श्रावकों के लिए है, लेकिन श्राविका बालिकाओं के भी लिए कुछ होना चाहिए। तो फिर आगे चल करके आपने बालिकाओं के विद्यापीठ के लिए भी समाज को प्रेरणा दी, आगेवानों को, श्रीमंतों को प्रेरणा दी। और ये जो मेराऊ गांव में महाजन ने वो जगह दी थी पूरी, तो जो बालकों की थी वो नागलपुर गांव थोड़े दूर है मेराऊ से, मानवी के पास में, वहां पर वो शिफ्ट की गई बच्चों की। और मेराऊ में जो थी वहां पर बालिकाओं के लिए विद्यापीठ का प्रारंभ किया गया, जिसमें भी बहुत सारी बालिकाएं पढ़ करके साध्वी जी वगैरह भी बनी है, शिक्षिकाएं, धार्मिक शिक्षिकाएं भी बनी हैं। और आज भी पर्युषण के दौरान पूरे भारत भर में कितने ऐसे संघ होते हैं जहाँ चातुर्मास साधु साधु के नहीं हो पाते हैं, तो वहां पर वो विद्यापीठ में पढ़े हुए बालक बालिका जो बड़े हो गए हैं वो पर्युषण की आराधना करवाने के लिए 2-2, 3-3 साथ में मिल करके जाते हैं। उसकी पूरी व्यवस्था ये विद्यापीठ की ओर से रामजी भाई वगैरह उसका व्यवस्थापन करते हैं, संचालन करते हैं। इसलिए विद्यापीठ द्वारा समाज के ऊपर कितना सारा बहुत उपकार हो रहा है। आचार्य भगवान मिले, मुनि भगवान मिले, साध्वी जी मिले, और ऐसे पंडित और अच्छे श्रावक श्राविका जो आराधक वर्ग जो उत्पन्न तैयार हुआ वो विद्यापीठ के कारण। तो 2 विद्यापीठ जमाला, एक भी हमें मुश्किल था, वहां पर दूसरी विद्यापीठ भी आपने स्थापित कर दी। और वहाँ व्यावहारिक और धार्मिक शिक्षण के साथ साथ, जैसे आजकल बच्चे हैं तो उनके लिए कंप्यूटर का ज्ञान भी जरूरी बन गया, जैसा बन गया है। बालिकाएं थी तो उनके लिए संगीत और सीवन क्लास वो भी सब साथ में सिखाया जाता है। अभी वो शालिका की अभी बंद हो गई, और लेकिन बच्चों की तो अभी भी चालू ही है नागलपुर के अंदर। तीसरी एक बाढ़ में राजस्थान में भी विद्यापीठ शुरू करवाई थी। वो ज़्यादा समय मेरे ख्याल से नहीं चल पाई, लेकिन उन्होंने प्रयास कितना था, उनका भावना कैसी थी कि मेरे समाज के हजारों और लाखों श्रावक श्राविकाओं पंच प्रतिक्रमण सीखने वाले होने चाहिए, वो आपकी भावना। और उस दिशा में अभी भी रामजी भाई वगैरह प्रयास कर रहे हैं। समय समय पर वो जाहिरातें करते हैं, और जो 5 प्रतिक्रमण वगैरह सीखते हैं और भी जीव विचार नवतत्ववादी जो सीखते हैं उनको इनाम परीक्षाएं लेते हैं और इनाम भी दिलवाते हैं अच्छी तरह, और भी अच्छे अच्छे आयोजन करते ही रहते हैं। तो ये आपका समाज के ऊपर कितना बड़ा उपकार है। फिर भी अज्ञानी लोग तो कई बार
हमेशा होता आया है। जब कोई विशिष्ट महापुरुष होते हैं ना, उनको समझने वाले थोड़े लोग होते हैं, उनकी टीका करने वाले ज्यादा होते हैं। और 2 विद्यापीठ चलानी थी तो स्वाभाविक है उसके लिए इतना पैसे तो चाहिए, सब फ्री था सब। हाँ, तो अज्ञानी लोग क्या बोल देते, ये जब देखो तो पैसे ही मांगते हैं। कोई प्रसंग हो, कोई धार्मिक महोत्सव हो, प्रतिष्ठा हो, कहीं दीक्षा हो, तो फिर ये बात तो स्वाभाविक रखनी पड़ती है, फंड करवाना पड़ता है। हाँ, तो अज्ञानी लोग जैसे तैसे भी बोलते थे। इसी प्रकार से 72 जिनालय आपकी प्रेरणा से कच्छ में हुआ है। वो भी जब हो रहा था तब तो अज्ञानी लोग उसके लिए भी कुछ न कुछ बोला करते थे, निंदा टीका विरोध भी करते थे। लेकिन साहब कहते थे, कोई बोले ना साहब ये ऐसा लिखते हैं, बोलते हैं, आप कुछ जवाब नहीं देते, कुछ बोलते नहीं है, ऐसे साहब बैठे हैं। साहब ने कहा बस यही जवाब, चुप रहना और अपना काम करते जाना। किसी की निंदा टीका सुन करके अपना अच्छा कार्य उसको छोड़ना नहीं चाहिए, लगे रहना चाहिए। धीरे 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 भविष्य में अपने आप उनको ख्याल में आएगा, अपनी भूल समझ में आएगी, पश्चाताप होगा। हाँ, कोई लिखता है और अपन सामने लिखेंगे तो समाज का वातावरण कैसा कलुषित हो जाएगा। हाँ, और हम भी उनके जैसे हो जाएंगे। फिर तो झगड़ा कोई दोनों के बीच में होता है कि जब भी, तब तो फिर दोनों एक समान जैसे लिखते हैं, सज्जन दुर्जन जो भी हो। इसलिए सज्जन व्यक्ति हमेशा खामोश रहते हैं, कम खाओ, गम खाओ और नम जाओ। ये सिद्धांत को साहब ने अपने जीवन में अच्छी तरह आत्मसात किया था। तो जब ये भूकंप आया 2001 में कच्छ के अंदर, तब कितने महीनों तक हजारों ऐसे बेघर जो हो गए थे उनको आश्रय मिला। विशाल 72 जिनालय की धर्मशालाएं, भोजनशाला, सब में खाना पीना, सब रहना, सब फ्री। तब समाज को ख्याल में आया कि साहब ने कितनी दीर्घ दृष्टि से ये सब किया है। इतना ही नहीं, अभी कच्छ में सब जगह गांवों में बस्ती कम होती जा रही है, शहरों में सब बस्ती बढ़ती जा रही है। और जिनालय उपासय अपने वडीलों ने बंधवाए, कितने भव्य। तो अगर साधु साधु वहां नहीं विचर पाएंगे तो सब क्या होगा। तो आपने 72 जिनालय में अच्छी व्यवस्था अच्छी रखी है, तो शेष काल में साधु साधु भगवंत भी वहाँ जितना चाहे वहाँ रह सकते हैं, उसकी सब व्यवस्था होती है। और चतुर्मास अलग अलग गांवों में सब जगह होते हैं। तो इसलिए चतुर्मास में फिर मुंबई से श्रावक शाही भी जाते हैं। तो समाज में धर्म सब टिक रहा है कच्ची समाज में, नहीं तो क्या हालत होगी सोचिए। एक और कच्छ में कितने भद्रेश्वर तीर्थ है, और भी कितने सारे 72 जिनालय है, डेडिया तीर्थ है, वांकी भी है, सुथरी की पूरी पंचतीर्थी, छोटी बड़ी पंचतीर्थियां हैं, सुथरी नलिया कोठरा तेरा जखू वगैरह, कितने भव्य गगनचुंबी जिनालय वगैरह हैं। और अगर वो बस्ती फिर भी कितनी कम हो गई है, फिर भी चतुर्मास होते हैं, तो साहिब जी आज्ञा देते हैं, साधु साधु जाते हैं। वो आपका कितना उपकार है, विशेष प्रकार से कच्ची समाज के ऊपर और अचलगच्छ के ऊपर भी है, और शासन के ऊपर भी आपका बड़ा उपकार है। तो ऐसे ऐसे तो कितने कार्य मुंबई में मुश्किल, जहाँ शुरुआत में गए तो मुश्किल से कभी 2-3 जगह पाला गलिया, लालवाड़ी और घाटों पर 2-3 उपास्य मुश्किल से थे हमारे अचलगच्छ के। फिर आपने प्रेरणा के और करीब 40 जितने उपास्य मुंबई में आपकी प्रेरणा से हो गए। इसके बाद अभी भी चालू होते ही रहते हैं। लेकिन उस जमाने में अभी एकाध उपास्य मंदिर बनवाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन आपने सभी श्रीमंत श्रावकों को प्रेरणा दी और बड़ा भगीरथ प्रयास करके 40 जितने उपास्य बनवाए, कुछ मंदिर भी बनवाए, प्रतिष्ठा भी हुई, अंजनशलाकाएं भी हुई आपकी प्रेरणा से। और जब वो समेत शिखर संघ पहुंचा ना, तो वहां पर कच्ची भवन धर्मशाला बन गई समेत शिखर के अंदर, और उसके अंदर 20 जिनालय बन गए। साहब ने कहा 20 तीर्थंकर मासक श्रवण करके मोक्ष में गए हैं। तो 20 जिनालय 6 महीने में केवल 20 जिनालय और उसकी अंजनशला का प्रतिष्ठा करके फिर दूसरा संघ निकाला समेत शिखर से पालिताने का 4.5 महीनों का। और उसी दौरान क्या हो गया था, इंदिरा गांधी वो बड़ा प्रधान, उसकी हत्या हो गई थी। तो कितना वातावरण कलुषित हो गया था। तो ड्राइवर सिख लोग थे मारने वाले, जो जहां जिसको सिख को देखो मारते थे लोग। तो वो जिनाले बन रहे थे, उसके लिए पत्थर जो चाहिए कितने दूर से ट्रकों द्वारा आते थे, और वो मकराना आदि से। और ड्राइवर तो अधिकांश तो सिख होते हैं। तो सब लोग चिंता करने लग गए, अपने जो रामजी भाई वगैरह थे, कन्वीनर वगैरह, वो भी क्या होगा क्या होगा क्या होगा। साहब ने कहा जो भी होगा अच्छा होगा, कोई चिंता मत करो, देव गुरु पर सब ठीक हो जाएगा। और बराबर समय पर भी वो सब ट्रक वगैरह आ गई और सब अंजनशला का प्रतिष्ठा अच्छी तरह हो गई। वो करवाने के बाद दूसरा संघ निकला। वहां पर साहिब जी ने नवाण यात्रा कई श्रावक शालिकाओं ने भी की, समेत शिखर जी की। साहिब जी ने खुद ने भी वाचना एक ही श्लोक पर दी।
4 महीने, और हमको भी आज्ञा दी, हमको भी बड़ा लाभ मिला उस वक्त। 6 कर्म ग्रंथ सभी का अध्ययन, अर्थ का अध्ययन करवाना। करीब 67 जितने साधु साधी भगवान थे, नवकार मंत्र के हमारे यहाँ जो अक्षर जैसे होते हैं, तो इतनों को सब साहब ने आज्ञा दी। तो 2-2 घंटे तक वो कर्म ग्रंथ का, और भाष्य हैं 3 भाष्य वगैरह, व्रत संगणी क्षेत्र समास वगैरह के, वो सबके अर्थ समझा करके उसकी परीक्षा लेने का वो सब भी लाभ हमको मिला आपकी कृपा से। और उसके बाद मुंबई, और साहब ने ये भी ऐलान किया था कि यहाँ पर 20 तीर्थंकर मासक श्रमण के साथ मोक्ष में गए हैं। तो मेरी ऐसी भावना है, हम इतने 67 साधु साधी हैं, कुछ श्रावक श्राविका भी उस साथ में हैं, तो कम से कम 20 मासक श्रमण हो तो अच्छा परिश्रम के दौरान। हाँ, साहब का डिको वचन के प्रभाव 20 की जगह पर 24 मासक श्रमण हो गए। और उसमें भी ऐसे दृश्य देखने मिलते थे कि खुद ने मासक श्रमण किया हो और दूसरा कोई 28 वाला 16 बत्ते वाला है, उसकी सेवा मासक श्रमण वाले पगचंपी वगैरह करते थे। ऐसी भावना, तीर्थ का प्रभाव और साहब की प्रेरणा और आशीर्वाद का ये प्रभाव था। ये बैठे हैं मुनिराज धर्मरत्न सागर जी, उस जमाने उन्होंने मासक श्रमण कर लिया। बात तो ऐसी हुई, साहब तो सबकी 28 की बात कहते थे, 28 तो आपको भी का 28 करोगे। उनका भी आचार्य सूत्र का कुछ योग चल रहा था, योग, उसमें आम्बिल होता है। तो साहब ने कहा 28 करोगे, तो साहब को वचन को ना कैसे कहें, भले साहब जैसी आपकी भावना कृपा, 28 का प्रारंभ कर दिया। लेकिन जब 7वां उपवास हुआ, हाँ, तो परीक्षा होती है ना, तो ऐसा कुछ हुआ भीतर में कि साहब को शाम को बोलिए, साहब मैं कल 8वां उपवास नहीं करूंगा, भला मुझे तकलीफ है, मैं कल पढ़ना नौकारसी करूंगा। साहब तो बड़े समझदार थे, दिव्य दृष्टा थे, कहा कुछ कोई बात नहीं। दूसरा कोई हमारे जैसे आग्रह करा, अभी एक दिन उपवास के लिए क्यों ऐसा बोलते हो, वो नहीं कहा। साहब समझते थे फिर क्या होने वाला है। रात पसार हो जाती है, रात गई बात गई, और कभी बैलगाड़ी जाती है, कभी खड्डा आता है, फिर आगे ठीक हो जाता है। घांच आ गई। और दूसरे दिन सुबह, रात को आराम किया तो फ्रेशनेस लगी जरा, सुबह पिछखान लेने के लिए गए, वंदन किया। साहब ने सामने से पूछा, क्या पिछखान लो नौकारसी, साहब उपवास का दे दो। अगर साहब सामने से हमको फोर्स करे कि उपवास करो, तो हमारा ईगो जरा हर्ट होता है कि, लेकिन सब सामने छूट दे दी, क्या करना है नौकारसी, उपवास दे दो साहब। एक उपवास आज थोड़ा अच्छा लगता है, और एक उपवास के लिए क्यों 28 गोवानी। हाँ, तो 8वां उपवास हो गया। फिर दूसरे दिन मैंने कहा 28 तो पहले भी एक बार कही है, एक अगर अनुकूलता हो, अगर एक उपवास हो जाए तो नवाई, जिसको बोलते हैं 9 उपवास नवाई हो जाए। नवाई का मतलब आश्चर्य भी होता है, ठीक है, भले कहती 9वां उपवास हो गया। फिर 10वां दिन मेरे ख्याल से पक्षी आती थी, हाँ, मैंने कहा एक उपवास और हो जाए ना तो डबल फिगर हो जाए, 10 का आंक डबल फिगर। 10वां उपवास हो गया। और 11वें दिन तो पक्षी आती थी, हाँ, तो फिर पक्षी को तो कैसे करे पालना, तो 11वां उपवास हो गया। फिर तो इतनी हिम्मत आ गई कि अभी तो एक छलांग लगे 16 उपवास हो जाएगा, थोड़ा करेंगे तो ऐसे करते करते 16 उपवास आ गया। और फिर तो इतनी हिम्मत और आत्मविश्वास बढ़ गया, हाँ, फिर तो गाड़ी नॉन स्टॉप आगे बढ़ती गई, सीधा मासिक श्रमण पर जाके रुकी, बीच में कहीं रुकी नहीं। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, तीसरे उपवास के तीसरे दिन केस लोच करवाया। जम्मूसरी का मेरे ख्याल से दिन था, नहीं ऐसे इनका लोच, शुरू में इनके बाल बहुत थे और बड़े ऐसे घुंचाए हुए थे और बड़े कठिन थे, 2-2 घंटे लग जाते थे लोच करने में। शरीरास पौना घंटा लगना चाहिए, उसकी जगह पे 2 घंटे 2.5 घंटे लग जाते थे। वो भी कभी अभी इधर नहीं, अभी जरा इधर करो, अभी इधर करो, शुरुआत ऐसा होता था। लेकिन उस वक्त तो बैठे अपान ओसी रानी, जरा ऐसा नहीं कुछ नहीं, नॉन स्टॉप लोच हो गई तुरंत। मासिक श्रवण के तीसरे उपवास में हमने लोच की थी। तो ये सब साहेब जी का अद्भुत प्रभाव, उनकी कृपा और प्रेरणा का प्रभाव था। तीर्थ भूमि का भी प्रभाव साथ में भले होता ही है। तो ऐसे तो कई घटनाएं हैं, समय कम है अभी साहब के अगणित गुणों में से कुछ गुणों का आपको थोड़ा सा
आउटलाइन केवल देता हो, चाहे जितने गच्छाधिपति पर होते हुए भी, और समाज के लिए बहुत जिनालय, 20 जिनालय, बड़े बड़े संघ वगैरह करोड़ों रुपयों श्रीमंतों द्वारा खर्चा करके समाज के ऐसे कार्य किए, शासन के कार्य किए, लेकिन खुद के लिए संस्कृत में कहावत है वज्रात अपि कठोराणी मृदूनी कुसुमादपि, अपने लिए वज्र से भी कठोर और दूसरे जीवों के लिए फूल से भी कोमल उनका हृदय होता है। एकदम सादगी पूर्ण जीवन जीते थे। आजकल तो कई मुनि भी होते हैं, अपने लेटर हेड छपाते हैं अपने नाम का, लेकिन आपको भी कभी किसी शिष्य ने या किसी भक्त ने कहा होगा शायद आपके नाम का लेटर पर जरा हमको लाभ दीजिए ना, मैं जरा बन छपा दूं, नहीं। कितनी लाखों श्लोक प्रमाण संस्कृत, गुजराती, गद्य, पद्य, साहित्य की रचना की, 63 सलाह का पुरुष चरित्र हेमचंद्राचार्य ने रखा है, 36,000 श्लोक जिसके हैं, उसका भी संस्कृत गद्य में आपने सरल भाषा में वो संस्कृत में लिखा है। समरादित्य केवली चरित्र, समरादित्य महा का हरिभद्र सूरी ग्रंथ का प्राकृत भाषा में है, करीब कितना 16,000 श्लोक प्रमाण है, उसका भी आपने सरल संस्कृत में उसकी रचना की है। और 24 तीर्थंकरों की जो संस्कृत में स्तुतियां, एक एक की 4-4, 24-56 श्लोक वो स्तुतियों के भी बनाए हैं, और भी श्रीपाल चरित्र, द्वारसा पर्वता संग्रह वगैरह रचना संस्कृत में की है। गुजराती में सभी प्रकार की पूजाएं, जितनी प्रसिद्ध है पूजाएं, सब पूजाएं आपने भी बनाई हुई हैं, सैकड़ों स्तवन भी बनाए हुए हैं। तो वो सब रचना करने के लिए वो रचना करने के लिए कोई नया कोई लॉन्ग बुक या अच्छी कोई डायरी कुछ नहीं। जो साधु साधी हर 15 दिन में पक्षी पत्र लिखते हैं, हमारा एक व्यवहार होता है। हाँ, तो वो जो पत्र मानो किसी ने पोस्ट कार्ड लिखा है, एक साइड लिखा है, एक साइड कोरा है, उसका भी यूज करते थे। इतनी भी जगह कागज की वो ऐसे गंवाते नहीं थे। किसी ने अंतर्दृष्टि लिखा है, आधा लिखा हुआ, आधा एक पार्ट कोरा है, तो उसका भी उपयोग कर लेते थे। लिफाफा को लिखता है कवर, उसको भी खोल लेते थे पूरा, हाँ, और उसके ऊपर भी रचनाएं करते थे। इतनी कर कसर, इतने भक्त थे बड़े बड़े, लाखों करोड़ों रुपए मिल सकते थे, लेकिन खुद के लिए रचनाएं करने के लिए ऐसे कागज, क्योंकि कागज कैसे बनते हैं, कितने पेड़ों से बनते हैं ना, पेड़ों को काटते हैं कितने, इसलिए बिल्कुल इसका मिसयूज, गैर उपयोग नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे टुकड़े का भी वो सदुपयोग कर सकते, इतना कर सकते जीते थे। पहनने के लिए कपड़े भी, इतने बड़े संघ हर रोज बड़े बड़े सामय्य होवे, और कभी कोई भक्त साधु महाराज को एक साहेब जरा ये नया कपड़ा लो आज, जरा इतना बड़ा शहर में अब प्रवेश हो रहा है, शायद कि नहीं, एकदम वो जीर्ण कपड़ा हो जाए तभी फिर वो दूसरे साधु ले लेते हैं। फिर भी जब नया कपड़ा बदलने का समय आए ना, तो उसको क्या करते थे, ये कपड़ा है नया, उसको ऐसे तैसे जैसे मोड़ देते थे। हम लोग क्या करेंगे, उसको बराबर व्यवस्थित घड़ी करके दबा करके रखेंगे। हम तो इसी करवा लेते हैं, हम तो वो नहीं करवा सकते हैं, लेकिन उसको घड़ी करके उसके ऊपर कुछ वजन दबा करके रखते हैं, तो वो भी नहीं। पहले से अच्छा था, उसको थोड़ा ऐसा कर देते हैं ताकि वो शोभा कम हो जाए। साधु के लिए वही आभूषण है, ऐसा हमको प्रैक्टिकल सिखाते थे। हालांकि आचार्य भगवान के लिए शास्त्र में अलग अपवाद मार्ग है, लेकिन उसका भी उपयोग प्राय करके वो नहीं करते थे। हमको प्रैक्टिकल शिक्षा देने के लिए कि साधु जितना सादा सीधा सिंपल होगा, वो उसका वही आभूषण है। टाप टिप ये साधु के लिए घातक है, हानिकारक है, वो अपने जीवन से प्रैक्टिकल हमें उपयोग देते थे। डोली भी देखो तो एकदम सिंपल, कोई हाई फाई अच्छी कोई ऐसी नहीं। पहले तो नवार आती थी उसमें नीचे, आजकल प्लास्टिक की, आजकल तो व्हीलचेयर भी हो गई, लेकिन एकदम सिंपल। तो इतने सादगी पूर्ण जीवन जीते थे। कभी बीमार तो जल्दी पड़ते थे तपस्या के कारण, फिर भी कभी कोई कर्म का उदय या वातावरण के कारण कभी कोई छोटा बड़ा कोई रोग हुआ तो भी उसके निवारण के लिए प्राय करके वो एलोपैथी दवा तो टालते ही थे। वो जानते थे कि एक तो अभक्ष्य पदार्थ भी मिश्रण कई बार होते हैं, और एक दर्द को दबाती है, वो भी दूसरा खड़ा हो जाता है, जड़ मूल से नहीं निकालती है। तो इसके लिए आपने घरगथ्थु उपचार ही पसंद किए थे 3-4। ऑटोमेटिक, कच्ची में ऑटोमेटिक, आटा माने लोट, गेहूं का लोट, आटा और मिट्टी और पानी, बस ये 2-3 चीज, या शिवाम्बू, बस इनसे ही मिटाते थे। भगंडर के एक बार हो गया था नीचे एकदम,
इतना, वो भी ऐसी मिट्टी और इनसे मिटाया। एक बार होठ के ऊपर इतना कुछ हो गया था, डॉक्टर ने कहा काटना पड़ेगा होठ, कुछ जरूरत नहीं है, उन्होंने बस ये मिट्टी अथवा मैंने समझो गेहूं का आटा पानी मिला करके ऐसा पेड़ा बना करके लगा देते थे, इसी से क्या और कर दिया। हमको भी यही प्रेरणा देते थे। और जब समय शिखर चातुर्मास था, वहां एक कच्छ गुजरात में डीसा का एक श्रावक, क्या नाम था, सुखमल जी, वो वहां पर पधारे थे और उन्होंने अपने जीवन में कई प्रयोग किए थे, साहब को और हम सभी को बताए, और साहब तो ऐसा चाहते ही हैं। क्या प्रयोग था, भात पानी का प्रयोग। आप लोग वंदन करके बोलते हैं साहब भात पानी नो ला दे जो जी, बोलते हैं भात पानी और वह आते हैं माल पानी। हाँ देखो पहले के जमाने में भात पानी का बहुत प्रयोग था, तो उन्होंने खुद ने भी केवल भात, हाँ वो भी कैसे, मशीन से पॉलिश किए हुए नहीं, हाथ से बनाए हुए जो चावल, सिंधी चोखा बोलते हैं, लाल थोड़ा सा लाल कलर भी होता है, उसमें सत्व होता है, मशीन में पॉलिश होता है तो सत्व सब निकल जाता है। तो ऐसे जो चावल बिना नमक के, और चावल का जो ओसामन जो पानी चावल का, वो दो चीज से आमिल करना, कितने दर्दियों पर उन्होंने प्रयोग किया था, रोग मिटा दिए थे बिना दवाई के। यही दवा भात और भात का पानी, भात भी एकदम ज्यादा नहीं पकाने का, थोड़ा आधा कच्चा पका, उसमें सत्व टिक रहता है, ज्यादा पकाएंगे तो सत्व जल जाएगा, इसलिए थोड़ा आधा कच्चा पक्का चावल बिना नमक का, हाथ से बनाया हुआ, उसमें उसी का पानी नहीं निकाल देना। आप लोग पानी फेंक देते हैं, उसमें तो सत्व होता है, उससे आमिल करना। तो और दूसरा प्रयोग, आमिल नहीं होता है, आमिल कितने ने तो फिर ओलियां शुरू कर दी इसकी, कितने साधु साधी भगवंतों ने। और जिसके आमिल नहीं होता है तो दोपहर को जब भोजन करो तो पहले थोड़ा इतना भात और जितना पानी ज्यादा उसके ऊपर पीछे को पियो, फिर थोड़ा 20-25 मिनट रह करके फिर भोजन करो। तीसरा एक प्रयोग है, सुबह नौकाशी के समय पे कच्चा चावल, बिल्कुल कच्चा इतना, और ले लेने का सीधा, और ऊपर 1-2 ग्लास जितना पी सको उतना ज्यादा पानी पी जाने का, चबाने का नहीं, निगल जाने का सीधा ही कच्चे चावल को। ये प्रयोग साहब ने शुरू कर दिया अपनी जिंदगी के अंतिम समय तक, वो चालू ही रखा वो प्रयोग। ऐसे जो सिंपल प्रयोग होते हैं ना, तो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सिंपल ईटिंग एंड हाई थिंकिंग, ये आपका जीवन मंत्र था। ऐसे हमारे गुरुदेव इतने गच्छाधिपति पद पर होते हुए भी इतने सादगीपूर्ण, इतने विनम्र भी थे। जब वो जवानी में थे, अभी दीक्षा से पहले की बात है, अध्यात्म कल्प ध्रुम नाम का ग्रंथ पढ़ रहे थे संस्कृत में, उसमें कोई एक ऐसा श्लोक भी आया जिसमें क्रोध कषाय की नुकसान और समता का जो फायदे बताए गए हैं, वो पढ़ करके उन्होंने एक संकल्प कर लिया कि मुझे जीवन में समता ही रखनी है, कषाय करना नहीं है किसी भी प्रसंग में। जब वो दीक्षार्थी की अवस्था में थे तब 2 श्राविकाएं कोई थी हमारे कच्ची समाज की, उनको समय शिखर की यात्रा करने की भावना थी, लेकिन उनके परिवार में कोई पुरुष साथ में चल सके ऐसे संयोग नहीं थे। तो किसी ने कहा कि ये गांगजी बाई को ले जाओ, ये तो धर्मिष्ठ है, इसको ले जाओ। तो फिर उसके पिताजी को बात कही, इजाजत ले गई और ये साथ में गए। लेकिन उनका संकल्प था मुझे बैलगाड़ी अथवा कोई पशु जिसको वहन करता हो ऐसे किसी वाहन में नहीं बैठना है। तो अभी बड़ी यात्राएं जाते हैं, ट्रेन अमुक जगह तक जाती है, फिर आगे जब जाना होता है तो बैल अपने घोड़ा गाड़ी में बैठ कर जाना पड़ता है। तो वो श्राविकाएं घोड़ा गाड़ी में बैठती थी और गांगजी बाई वो अपना थैला सामान का इसको दे देती थी गांगजी को। तो थैला लेकर के उनके पीछे दौड़ते जाते थे आगे के पीछे। हाँ, फिर भी उनको धन्यवाद देना तो दूर रहा, उनको कटु शब्दों में, उनका किसी का नेचर ऐसा हो जाता है, गुस्से वाला, बाल बाल में कठोर शब्द बोलना, गाली गलौज भी कर देना, ऐसे दोनों में कोई थे। हाँ, फिर भी गांगजी बाई बस ये श्लोक के सामने रख करके समता ही हमेशा रखते थे। और भी हमने कुछ प्रसंग देखे हैं, पर सभा में कोई अपमान कर रहे जैसा तैसा बोल दे, फिर भी एकदम शांत रहते थे। समय शिखर का संघ, मुंबई से समय शिखर का मेरे ख्याल से जबलपुर में पहुंचा था, बड़ा सिटी समय हुआ, सभा हुई, उसमें कोई वक्ता श्रावक खड़े हुए बोलने के लिए, और ये संघ की या संघपति की या आचार्य भगवंत की अनुमोदना करना चाहिए ऐसा प्रसंग था। लेकिन वो सब साइड में 72 जिनालय के विरुद्ध में एल फैल वो बोलने लग गया।
हम सभी साधु साधी भी ऊंचे नीचे होने लगे, अरे क्या प्रसंग है और ये क्या बक रहा है। और साहब तो ऐसे शांत ठंडे कले से बैठे हैं, चे कोई चिंता नहीं, हाँ गुस्सा नहीं, कोई शांति से उसको रोकते भी नहीं। अगर चाहते तो उसको बैठा देते, तो अरे भाई बैठ जाओ, क्या प्रसंग है, तुम क्या बोल रहे हो, फिर मुझे मिलना बाद में, जो कहना हो अभी नहीं, कुछ नहीं। उसको बोल, जितना बोलना हो बोलने दिया। जब वो बोल करके थक गई बैठ गया, तब साहब ने विथ स्माइल स्मित के साथ पूछा, भाई आपका नाम क्या? अमुक नाम। गांव? अमुक। पर मेरा गाँव है। ओ आप तो उनके बेटे? क्योंकि याद शक्ति बहुत तेज थी, एक बार किसको देखते नाम पूछते याद रह जाता था। ओह आपके पिताजी ने तो कितने अच्छे काम किए हैं, मंदिर में योगदान दिया है। आपसे अगर आपकी अनुकूलता हो तो लाभ लेना, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है। बस इतना बोल करके फिर अपना जो दूसरा टॉपिक था उसमें लग गए, तो मामला एकदम शांत। दूसरा कोई होता अगर वो जरा गर्म हो जाते, गुस्सा करते, तो पूरा वातावरण कैसा हो जाता, चुप एकदम, और चारों ओर पड़ गए। कैसे पड़ते? दुनिया में तो इतनी बात होती है, लोग मिर्च मसाला डाल देते हैं और बात का बवंडर करके फैलाते हैं। लेकिन आप इतने समयज्ञ थे, समय सूचक थे और धीर गंभीर थे, शांत स्वभाव के थे। ऐसी परिस्थिति में भी आपने अपने आप को कंट्रोल रख लिया और एकदम धैर्य पूर्वक प्रश्न को निपटा दिया। और भी ऐसे ऐसे प्रसंग जो कि हमको याद आ रहे हैं। भर सभा में कोई कुछ भी बोल दे, अपमान कर दे, तो भी आप गुस्सा नहीं करते थे। और कभी कोई छोटा बाल मुनि हो, शिष्य, कोई ऐसी गलती मन हो गई और कभी उसको उपालम देना पड़ा, थोड़ा सा ठपका देना पड़ा, तो शाम को प्रतिक्रमण के समय में सभी साधु भगवान मांडली में बैठ जाते हैं। तब उस मुनि का नाम लेकर के बोलते, फलाना मुनि, मैंने तुमको आज जरा ऊंची आवाज में ठपका दिया, उनको जरा दुख हुआ होगा, तो इसके लिए मिच्छामि दुक्कड़म। हम लोग ताज्जुब रह जाते थे, इतने बड़े गच्छाधिपति आचार्य भगवान, आप तो गुरु है, गुरु नहीं कहेगा तो कौन कहेंगे, शिष्य की भूल होती है तो कहना आपका कर्तव्य है। हम भी फिर कहते हैं, इसलिए सर आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन साहब ऐसा क्यों करते थे मालूम है? हम सबको प्रैक्टिकली कोई शिक्षा दे रहे थे, देना चाहते थे कि किसी को भी अपनी निमित्त से मन दुख हो तो अहंकार को गौण करके क्षमा याचना करने में जरा हिचकिचाहट करनी नहीं चाहिए। ऐसी प्रैक्टिकल शिक्षा ये हमको देते थे। वात्सल्य के तो आप भंडार थे। कैसा भी कोई छोटे से छोटा व्यक्ति भी आएगा, उसको भी बड़े प्रेम से उसके साथ बात करते थे। चाहे कोई कोट्याधिपति करोड़पति भी आए और कोई करोड़पति जैसा कोई व्यक्ति एकदम गरीब से गरीब आए, सबके साथ एकदम वात्सल्य पूर्ण प्रेम से बातचीत और व्यवहार करते थे। ऐसे यथार्थ नामी, नाम के अनुसार गुण, नाम था गुण सागर, गुणों के सचमुच वो सागर थे। इन गिनत गुण हैं, कितने गिनाए, समय भी ज्यादा हो गया है तो थोड़े कहा ज्यादा समझना। एक और बात कह दूं, जब आपकी आचार्य पदवी हो रही थी तो आचार्य बनने के बाद प्रथम जो उपदेश लेना होता है, उसमें आपने एक उद्घोषणा की थी कि हमारे जैन समाज की शक्तियां तो बहुत हैं, लेकिन कभी किसी के निमित्त से, कभी दूसरे को ऐसे छोटे छोटे निमित्तों से आपस में लड़ने में, पत्रिकाबाजी में हमारी शक्तियां फिजूल की उसका व्यय होता है, दुर्व्यय, और समाज में भी शासन की हिलना होती है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जितने भी अभी जैन शासन में गच्छ संप्रदाय समूह हैं, सभी के जो मुख्य मुख्य गच्छाधिपति आचार्य भगवान साथ में बैठे, शास्त्रों के साथ में रख करके आपस में चर्चा विचारणा वगैरह करके, अगर कोई ऐसा एक निर्णय पे आ जाए कि जैसे अभी तिरापद में एक ही आचार्य होते हैं, कितने सैकड़ों साधु साधु आचार्य एक ही, ऐसा अगर कोई हो, अचलगढ़ में भी गच्छाधिपति एक ही होते हैं, टाटागढ़ में भी गच्छाधिपति बहुत हैं अभी, तो मैं कोई आग्रह नहीं रखूंगा। मुझे आचार्य पद का त्याग करना होगा तो मैं करने के लिए तैयार रहूंगा। और मैं ये भी आग्रह नहीं रखूंगा कि हमारे गच्छ की अमुक समाचारी तो रहनी चाहिए, ऐसा भी मैं आग्रह रखूंगा नहीं। अगर सब एक होते हो तो ऐसी उद्घोषणा आपने तो की थी। इसके बाद जहां जहां कोई विशिष्ट आचार्य भगवान मिलते थे, उनके साथ भी इसी बात पर आप चर्चा करते थे कि हमारी शक्तियां कितनी फिजूल में जा रही हैं, शासन की हिलना हो रही है। आचार्य भगवान रामचंद्र सूरी, उनके साथ भी 2-3 बार हम भी साथ में थे। उस वक्त साक्षी के रूप में आपने कहा था कि कुछ कीजिए तिथि 4 और 5 संवत्सरी के विषय में, कितने
आपस में झगड़े होते हैं, शासन की हिलना होती है। कहा, उन्होंने कहा क्या करो, काल का ये प्रभाव है, हम भी चाहते हैं लेकिन अभी ये होना मुश्किल है। शिव मस्तु सर्व जगत, भावना अच्छी है लेकिन कभी पूरी दुनिया का मोक्ष होना संभव नहीं है, ऐसी कुछ ये बात है। लेकिन आपके हृदय की ये व्यथा थी और ये भावना थी कि अगर सब एक होते हो तो मेरे आचार्य पद का और मेरी गच्छ की सामाचारी का भी मैं आग्रह रखूंगा नहीं। ऐसे शासन भक्त, उदार दिल और अनेक गुणों के भंडार यथार्थ नामी पूज्यपाद गुरुदेव पिछले थोड़े दिन अस्वस्थ रहते थे। पिछले समय में दक्षिण भारत में भी घूम के आए थे। पिछले उम्र में कोयम्बतूर, कोचीन, कलिकट, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद सब घूम के आए थे, सब जगह। राजस्थान में दंताणी तीर्थ की प्रतिष्ठा अंजनशला का हुई, आचार्य पदवी दी गई कला प्रसाद सूरी महाराज को अचानक आपकी कर कमलों से। मुंबई आए, तबियत बिगड़ने लगी। अंत में दादर सिल्वर अपार्टमेंट में कुंथुनाथ जिला की प्रतिष्ठा करवाई। चतुर्मास हुआ था महालक्ष्मी मुंबई में, तिरुपति अपार्टमेंट, कमंदी राम जी गोवाणी बिनमाल के उन्होंने करवाया था, बड़े भाव से करवाया था। 2 चतुर्मास हुए, साहिबकार हम भी साथ में थे। और विक्रम संवत 2044, विक्रम संवत 2044 उस चतुर्मास में आपका स्वास्थ्य एकदम डाउन होता गया था। आखिर मजबूरन भक्तों ने उनको बॉम्बे अस्पताल में दाखिल करवाया। हालांकि वो नहीं चाहते थे, वो भी उधर भी कहते थे मुझे उपास में ले चलो, मुझे उपास में ले चलो, नहीं तो पछताओगे बाद में। वो जान गए थे कि अभी आयुष ज्यादा नहीं है। और उधर तो क्या आईसीयू में रख देते तो किसी को अंदर में जाना ही नहीं मिलता है, नौकार सुनाने के लिए भी। लेकिन भक्तों को तो होता है कि कोशिश करें। तो ऐसे करते करते ये आज का दिन आ गया। आज की रात्रि भादरवा अमावस्या हमारी है, आपकी 14 वाले, और मध्य रात्रि के समय में बॉम्बे अस्पताल में उस वक्त साथ में कला सागर उस वक्त घनी बड़ी अवस्था में थे, वो भी वहाँ पर थे। हम भी बीच बीच में कभी जा आते थे। आचार्य उसी अगले साल में आचार्य बने थे, उसी साल में आचार्य पदवी आपको दी थी और वहाँ विद्यमान थे। आपने अंतिम समय में जो भी निर्यामना करानी होगी वो यथाशक्य करवाई और आपकी रात को आपकी आयु समाप्त हुई। समाचार चारों ओर फैल गए, शोक का वातावरण हो गया। दूसरी दिन मुंबई में दादर में कौन सा बड़ा विशाल जो था ग्राउंड, जिमखाना दादर की कोई, वहाँ पर आपकी बॉडी को रखा गया। लाखों भक्तों ने वहाँ पर दर्शन किए और भक्त श्रावकों ने फिर आपस में विचार विनिमय करके आपके अंतिम जो अग्नि संस्कार, जहाँ आपकी प्रेरणा से जो भक्त जिनालय तीर्थ अभी बन रहा था, अभी प्रतिष्ठा होनी बाकी थी, तो प्लेन द्वारा वहाँ पर चार्टर प्लेन द्वारा लाए गए। और फिर तीसरे दिन माने आसो सुदी दूज के दिन आपका वहाँ पर अग्नि संस्कार हुआ। तो आज ऐसे उनकी 32वीं पुण्यतिथि पर यथाशक्ति किंचित गुणानुवाद हमने किए और आपकी आत्मा जहाँ भी हो हम प्रार्थना करते हैं जल्दी से जल्दी मोक्षगामी बने और सकल संघ के ऊपर तो आपके आशीर्वाद तो बरस ही रहे हैं। तभी तो आपके विदाई के बाद भी आपके प्रतापी पटगर तप चक्रवर्ती सर्वोच्चाधिपति आचार्य बनु श्रीमद गुणोदय सागर सुरसु जी महाराज साहब आपके कमलों से भी अनेक विशिष्ट शासन प्रभावक कार्यों की हारमाला चलती रही। और अभी आपके विदाई के बाद अभी आए हैं गच्छनायक के रूप में कलापुरी आचार्य भगवान। छोटी उम्र में 36 साल की उम्र में साहिब जी ने उन्होंने अचानक उनको आचार्य पद पर आरूढ़ किया दंतानी तीर्थ में। कुछ दिनों पहले उपाध्याय पद पर आरूढ़ किया राजस्थान में ही, और थोड़े चतुर्मास की बात तुरंत आचार्य पद भी प्रदान किया था। तो छोटी उम्र में आचार्य पद मिला और शरीर का कद भी छोटा है लेकिन प्रतिभा बहुत विशिष्ट है और आज की निष्ठा और प्रेरणा से भी कई विशिष्ट शासन गच्छ के विकास के कार्य हो रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे गच्छाधिपति गुरुदेव उनकी 32वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आज 8म तप किया है। सोनाली बहन ने उनकी अनुमोदना करेंगे। करीब 10-12 श्रावक श्रावी कौने 3 आमिल में भी नाम लिखाए हैं, सभी को धन्यवाद। और आज 32वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 32 रुपयों की प्रभावना है, जिसमें 10 रुपये तो श्री संघ के हैं ही, 10 रुपये नवल प्रभा गोविंद जी भाई सोनी
सोनी परिवार की ओर से 10 और हाँ हाँ और क्या नाम है? कस्तूर चंद गुलीचंद जी जैन। कितना रुपया? तो 10 रुपया। हाँ हाँ 10 रुपया। 10 रुपया ना, 10 रुपया। हाँ तो आपकी ओर से भी 10 रुपया। और कितने का लगा? वो अलग आना है तो ये चाहिए कि आपका इसमें ही है। हाँ वो अलग है। और 2 रुपये और जो चाहिए वो अपना उपाध्यक्ष श्री सुरेंद्र भाई की ओर से। इस प्रकार से 32 रुपये की आज आपके साथ मिल करके सब 10 रुपया संघ का, 10 रुपया डबल प्रवाह परिवार सोनी परिवार, 10 रुपया अभी जो नाम बोला वो परिवार और 2 रुपया सुरेंद्र भाई परिवार। इस प्रकार से 32 रुपये की आज प्रभावना है। और 3 आंबिल जो करेंगे उनको सुरेश भाई मुथा, जिन्होंने जितनी भी रविवारी शिविर सभी का लाभ ले लिया है, बड़े उदार और भावनाशील है। हमको कहा महाराज साहब कोई भी ऐसा कार्य हो हमको पूछने की जरूरत नहीं है, हमारा नाम सब में लिख लेना। उन्होंने छोटे महाराज को मिले होंगे तो उनको तो 51 रुपया की प्रभावना उनकी ओर से होगी 3 आंबिल करने वाले के लिए, और 8 वालों के लिए 100 रुपये की प्रभावना भी वो सुरेश भाई मुत्ता की ओर से होगी। और अखिल भारत एथलेटिक्स संघ उन्होंने भी पूरे भारत में जो भी 8 करेंगे उनको भी जो भी प्रभावना होगी वो जायरात बाद में होगी। कल का प्रोग्राम साहिब जी की स्तवन 24 का हाउसी, साहिब ने सैकड़ों स्तवन बनाए हैं, तो उसमें जो 24 तीर्थंकर के कुछ स्तवन तो उपाध्याय पद पर थे, अभी तब बनाए, कुछ आचार्य पद तो बनाए हैं। तो वो स्तवन 24 की किताबें छोटी हमारे पास कुछ किताबें हैं, आपको दी जाएंगी, तो उनमें से बोलेंगे स्तवन मिल करके। और हाउसी का जो पन्ना होता है वो भी तैयार आपको मिल जाएगा, आपको पन्ना लाने की जरूरत नहीं है, केवल आपको पेन लाना है बिना भूले। कल व्याख्यान में 9:15 बजे जब आ जाओ, जरा कोशिश करना जल्दी आने की, क्योंकि उसमें टाइम लग सकता है 1.5 घंटा करीब। तो पेन लाना है, आपको पन्ना दिया जाएगा जिसमें 16 अंक, 24 में से 16 अंक लिखे हुए होंगे, और मैं बीच बीच में कोई भी अंक बोलता जाऊंगा। उस नंबर के भगवान की स्तवन की 2-3 पंक्तियां बोलेंगे, 2-3 गाथाएं, और वो नंबर अगर आपके उसमें लिखा हो तो उसके ऊपर पेन से सर्कल राउंड करना होगा, केवल इतना आपको करना होगा। और जब कोई ऊभी अथवा टेढ़ी आड़ी लिटी आपकी कंप्लीट हो जाए तो हाथ ऊंचा करेंगे तो उसको इनाम मिलेगा। 10 ऊभी 10 आड़ी माने 4 माने 8 और 2 क्रॉस 10 इनाम वो, और हो सकेगा अगर तो पूरी फुल हाउसी का 11 10 तो होगा ही, तो सब इनाम भी दिए जाएंगे। इसलिए कल पेन लाना भूलना नहीं। और परसों भी सभी को आना है। आज जो गुणानुवाद हुए अभी उसमें से भी प्रश्न, इनामी प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ साथ में यहाँ पर नवकार मंत्र की धुन भी थोड़ी भी चलती रहेगी, और इन श्रावक जो यहाँ पर बैठे हैं भाग्यशाली, उनका इधर केश लोच भी आपको देखने को मिलेगा, बरोबर है। हाँ, इस प्रकार का ये कार्यक्रम है। जिन्नाद में कुछ भी बोला गया हो, हार्दिक मिच्छामि दुक्कडम। गुरुवंदन साहिब जी के करना। हाँ 1 मिनट अभी पहले सबसे पहले अपन करेंगे साहिब को। गुरुदेवो गुरुदेवता गुरुविन घोर भला, जे गुरुवाणी वेगड़ा ते रणवरिया संसार, शांत मूर्ति गुण गणना धरिया कपूर्ति विद्वदराया, शुद्ध संयमी विद्यापीठ द्वय संस्थापक सुरीश्वर राया, मौकेर जिनालय विसर जिनालय न प्रेरक भारत दिवाकर करुणाया, गच्छ शासन उन्नति कर अप्रमत्त जस दर्शन आनंद गाया, शासन सम्राट युग देश प्रभाव गच्छ दिवाकर गुरु गच्छ राया, साहित्य सर्जक गुण सागर सूरी नमु शेष गुरु गुण गाया।